Chalo. So, okay, yesterday someone had a doubt and because the session ended, so I couldn't take it up. Please type in your doubt again. If anybody else has any doubts from yesterday's session, you can ask. कोई doubt? Session attend किया था online में? ठीक है? Multiplication by 5 case 1. Exercise sum 2 and 3 how to solve. In multiplication of? Multiplication by 5. Multiplication by 5. When the unit digit is 5. For example, give me an example. 341 into 20. 341 multiply 25. This you are saying how to solve. See, now you have various options. What I do is I divide. I don't know, in your assignment I must have given, you can do 341 multiply 100 by 4. ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, because 25 is what, 100 by 4. 341 you can divide by 4 and then 2 decimals you put. ठीक है, you can do it like this if you remember this concept. Then otherwise you can do simple multiplication also. You can also do 340 multiply 25 means 34 multiply 25. ठीक है, 34 is what, 17. Some I do calculations like this. 17 multiply 2 multiply 25 is what, 5 multiply 5. So this is 10. 17 multiply 5 is what, 85 multiply 10. ठीक है, and then you have a 341 था ना, तो plus 1 multiply 25. ठीक है, okay. That's why I did not tell you a lot of shortcuts, because again you'll get confused and in the exam you won't remember where I have to use this one, and you will keep on thinking shortcut लगाएं या फिर पूरा solve करें. So it is better to, since in terms of calculation it is better to do whatever comes to your mind first, कि इसमें ऐसे कर लेते हैं जो time कम लगे. Okay. So there are certain doubts. Ma'am, will you be explaining sum of all natural numbers? Yes, yes, yes. Of course, I will be explaining all of that. And we will do this in progression series, because right now I haven't told you that what is progression. Square root above 75. Kashish, we have not done square root till now. I think that you are saying you are not clear with the concept of finding square above 75, right? See, for example, if you have a number, let's say 100, we have to consider, in that case we consider 2500. ठीक है, देख लो till 70. चलो, I'll revise this with you. If you have 1 to 25, I told you to learn the 1 to 25, I told you to learn the squares of all of these numbers. Till 20 we all know, and then 5 more you have to learn. देख के याद आ जाता है, ठीक है. And 25 to 50. For example, if I say find the square of 42, what do we do in this case? 25, 100 we take as base. ठीक है. While this is in the range of, this is less than 50. So 50 से इसका difference कितना हुआ? 8 का. ठीक है, okay. जो ये difference है, I know some of you who have not attended the class might feel that this is a bit new to you. ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, otherwise it is simple calculation. You can see the recording and check. कोई doubt होगा तो पूछ लेना, ठीक है. So if any number is less than 50, हम क्या करते हैं? We take base as 2500. Why 2500? It is the square of 50. ठीक है, ये 50 का square है, तो हमेशा we take 2500 as the base. Now for example, I have to find 42 square. 50 minus 42 is what? 8. So I will subtract 8 from 25. ठीक है, I will subtract 8 from 25. Why have I taken 2500 as the base? Because
50 square. ठीक है, 25 minus 8 I will get 1700. Then I will add क्या करेंगे? 8 square. 8 square is what? 64. So 1764. I told you so now this is the trick for numbers 25 to 50. 50 to 75 का क्या trick होता था? 50 to 75, for example, if I say find square root of 64, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? Again take 2500 as the base. ठीक है, this is 14 more than 50, so adding 14 to it. ठीक है, what will I get? 3900. Now I will add 14 square, which is 196. 690,409. ठीक है, understood? If less than 50, then you first subtract the number, add its square. If it is more than 50, then you add the number and add the square. ठीक है, understood? All right, clear to everyone? Now, for numbers which lie in the range of 75 to 100, basically they are closer to 100. In that case, you do not have to use this trick. Again, as I said, that mostly exam में इतने large numbers आते नहीं है, but you should know first 100 का square. So, if you have to find out square of a number which is lying in this range, 75 to 100 का range में, please try to be on time. ठीक है, I am never late. ठीक है, because I feel like कि if anybody is sitting, तो उनका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए. You all are preparing and you have classes back to back. So if someone is sitting, it should not be me who's wasting time of any student. ठीक है, so try to be on time. So 75 to 100 के बीच में होता है अगर, for example, if I have to find 96 square, 96 का square find out करना है, ठीक है. In this case, we do not use 2500 as the base. ठीक है, in this case, we see 100 minus 96. जिस number का square find out करना है, 100 minus 96 is what? 4. That number we subtract from the number itself. पहले हमने क्या किया था? 2500 को हम बेस लेते थे, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे. 96 minus 4 is what? 92. And these are the first two digits. Last two digits क्या होंगे? ठीक है, 4 square 16. Understood? ठीक है, okay. Now is it clear? If you have 98 square, क्या होगा देखो? 98 square find out करना है, कल किया था. 98 minus 2. Why am I doing 98 minus 2? Because 98 100 से 2 कम है, ठीक है. So उसी में से जितना वो the difference that we have from 100 to 98, I will subtract from 98 itself. I will get 96. These are my first two blanks. Then last two blanks will be इसी difference का square. ठीक है, okay, clear? Yes. In this we have to consider 100, but जैसे for example in that case you consider 50 and 50 square is 2500, that you consider the base. ठीक है, 2500 में से आप add और subtract करते हो. In this case the number itself is the base. 98 में से ही I am subtracting 2. ठीक है, clear? So practice 1 to 100. Try writing all the squares. अच्छा, how many of you asked your friends और बैचमेट्स की 1 प्राइम होता है या कॉम्पोजिट? पूछा किसी ने? पूछा? Did everyone had the answer? No? चलो, अच्छा क्यों होता है फिर रिवाइज करा दो. Why is 1 not a neither prime nor composite? ये तो सबको याद होगा. 2-3 चीजें सबको याद होती है. Mitochondria is the powerhouse of cell. 1 is neither a prime number nor a composite number. ये तो सबको याद होता है, ठीक है. तो why is 1 neither prime nor composite? Yes, because prime numbers की definition क्या होती है? The number which has only exactly two factors, 1 and itself. 1 के कितने factors होते हैं?
1 which is 1 itself. ठीक है, so that is why 1 is not a prime number. Composite numbers की क्या definition होती है? More than 2 factors. ठीक है, at least 2, more than 2, at least 3 factors तो होते ही हैं. ठीक है, so which means 1 is not a composite number as well. ठीक है, चलो अच्छा, there is one more doubt. Can you explain once again? 10 minus 30 multiply 100 divide by 50 multiply 25. This? Yes. See, सबसे पहले going by the rule of BODMAS, which is the first thing we have to look for, divide. Brackets नहीं है, order नहीं है, ठीक है? So we will divide. Here I have division between 100 and 50. Always go step by step. You won't feel कि you have missed anything, ठीक है? When you will think कि हम ना एक step में ही सब कर लेते हैं, no, उसमें गलती होगी. Take 10 more seconds, take 20 more seconds, especially in the very beginning of your classes. अभी आप start कर रहे हो. Eventually, maybe you could do. Still, till now, if you will give me this equation, I won't do it in one go because I know it increases my chances of making mistakes. Calculations इतनी easy है. Why not write only? कितना 10 seconds more it will take you. ठीक है? 10 minus 30 multiply 100 divide by 50 क्या होता है? 2. 2 multiply 25. What is the next thing that we have to do? Multiplication. ठीक है? 10. Up, you can either multiply all three together. Also, you can take two values as well. ठीक है? For example, I can do it like this also because these are positive. I'm multiplying this पहले ही. So you have 10 minus 30, 1500. You will get minus 1490. ठीक है? Okay. Anmiksha, is it clear? Was it? अच्छा, it was plus 25 क्या? See. प्लस लेके भी कर लो तो भी यू विल गेट दिस. ठीक है, 10 minus 30 multiply 2 plus 25. ठीक है, so 10 minus 30 multiply 2 plus 25. This is the equation. Now I will multiply first. 30 multiply 2 minus 60 plus 25. 10 minus 60 क्या होता है? What is 10? अभी if I give you this 2 minus 5 plus 4, क्या आंसर आएगा? 6 minus 5 या फिर you can also minus 7. कैसे? तो वो लगा लो तो भी. 5 plus 4 9. But 5 negative 5 plus 4. ठीक है, negative 5 plus 4. ठीक है, you have to see when if you are applying BODMAS also, ठीक है, तो आप add कर रहे हो. Okay, you are adding 4, ठीक है, and you are adding 2. Understood? If you are applying BODMAS, तो हम क्या कर रहे हैं? We are adding only brackets of division, multiplication, addition, subtraction. ठीक है? You are adding, but you have to add positive values first. तभी तो you will be left with subtraction. Okay? Even if you do it like this, जैसे आप बोल रहे थे, 2 minus 5 plus 4. आप plus 4 तो कर रहे हो, but you are also using plus 5. When you are saying 9, you are saying plus 5. But this is what? This is minus 5. So even if you do like this, you have to say 2 minus 1. ठीक है? Because minus 5 plus 4. Plus minus में confuse नहीं होना. Don't think of BODMAS in this. मत सोचो, नहीं तो confuse हो जाओगे. इसे simple कर लो. 2 minus 5 minus 3. ठीक है? -3 प्लस यहाँ पे क्यों? ओह हाँ 1. ठीक है, 2 minus 5 minus 3 -3 plus 4 1. ठीक है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए, इफ यू फील दैट BODMAS इज कंफ्यूजिंग यू कि कौन सी एडिशन वाली टर्म्स है व्हिच वी हैव टू पुट टुगेदर, देन यू सिंपली डू इट लेफ्ट टू राइट जैसे आप करते हो. इफ आई से 7 minus 8 plus 9 plus 10, कैसे करेंगे? 7 minus 8 minus 1. 7 minus 8 minus 1 plus 9 plus 10. Minus 1 plus 9 8. 8 plus 10 8.
ठीक है, सिंपल लेफ्ट टू राइट कर लो. अगर सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, डोंट गेट कंफ्यूज, डू इट लेफ्ट टू राइट, इट इज द सेम थिंग. हाँ, एट विच पॉइंट? 2 minus 4 ऐसे. ठीक है, you can, I'll show you both the methods. You can go left to right also, you can use BODMAS also. ठीक है, 2 minus 5 minus 4, 2 minus 5 minus 3 minus 3 minus 4 minus 7. हो गया सिंपल. You can also do 2, addition का तो सिर्फ यही है, तो no, I cannot combine it with any other thing. I have subtraction minus 5 minus 4. ठीक है, इट इज द सेम थिंग. एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली डू इट लेफ्ट टू राइट कर लो. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. अब आपके पास ये क्वेश्चन था विच नहीं, yes, because they are, oh okay, so okay, so there are a lot of, see, in the handout I have given you definition, but when I have told you in the class, I have explained a lot of aspects along with it, and I have told the questions also of UPSC in which those applications are being used. So I'll advise you, 2.5 hours की class है, तो आप देख लो एक बार, you will get a nice base. ठीक है, why should we miss the very first class जिसमें हम we are क्राइम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की बेसिक्स नहीं बने, बेसिक्स नहीं बने, तो फिर जिस क्लास में बन रहे हैं वो स्किप नहीं करनी. ठीक है, ओके. सो 10, अच्छा ये हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, ये रहा, ये, दिस इज द इक्वेशन दैट आई हैव. अगेन 10 minus 60 minus 50 plus 25 minus 20. ठीक है, ओके. अनमिक्षा, इज इट क्लियर? चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन. We did a similar question yesterday from your PYQs. ठीक है, अच्छा, in yesterday's class I also discussed PYQs of BODMAS and this. So again it is important कि आप attend कर लो, 1.5 की speed पे कर लो. ठीक है, okay. So this is the question that you have. You have to fill in the blanks with the suitable symbols such that you get the answer 43. ठीक है, ब्लैंक्स कैसे फिल करेंगे, PQRS या SPQR और PSQR और RQPS. All of this is given to confuse you. Why? Because this is what P plus है. ठीक है, so basically you are getting BODMAS equations only. Yesterday I told you that in this someone asked, is there a shortcut to solve? ठीक है, I said that you can think of it like this, that division जो है वो sign will be in place of certain numbers which can divide each other. ठीक है, because you want the answer 43, 43.5 तो नहीं चाहिए. ठीक है, so I'm giving you a hint that if you will put divide here, you will get 3 by 4. 3 divided by 4 is what? 0.75. इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, if you multiply this by 2 also, then also you will get 3 by 2 which is 1.5. ठीक है, तो आपके if divide comes here or here, you will get decimal value, but we want value as 43. So it is likely, I'm not saying it is sure, it is likely that divide will be somewhere here, because I know 50 divided by 10 is 5, or here 10 divided by 2 is 5. ठीक है, तो divide या तो इधर होगा या फिर इधर होगा. This is a possibility, highly probable chance है इसका.
यहाँ पर होने के कम चांसेस हैं. Still there might be cases जहाँ पर let's say at the end you are multiplying and वो decimal cancel हो रहा है. So I am not saying it is not possible, but likely ज़्यादा chance ये है कि divide यहाँ आएगा. तो when we have 4 options, we will see कि divide का symbol which is S. S should be either here or here. ठीक है. So I will check options B and C first. ठीक है. हम ये वाला option we will check afterwards. If B and C do not satisfy, then I will check. ठीक है. तो option check करने की भी there is a logical sequence. आप थोड़ा सा logic you can apply that divide का symbol कहाँ आएगा. Plus minus can be anywhere. But for divide we know that at least two numbers. If we have a whole number 43 here, what are whole numbers? 0, 1, 2, 3. ठीक है. If we have a whole number 43 here, it means that decimal होने के there are less chances in this place. Divide should be either here or here because 50 भी 10 से divide होता है और 10 2 से divide होता है. ठीक है. चलो check option B and C. Which one satisfies? हाँ. The only method for doing this question is using options. Option C? C आ रहा है? नहीं बट सी करके देखो 43 आ रहे हैं. नहीं बट आई सेड बी एंड सी आर मोर लाइकली. ए एंड डी भी हो सकता है. इन एग्जाम यू कैन नॉट एलिमिनेट until unless you get the right answer. At least अगर आपने तीनों एलिमिनेट कर दिए then you can say that okay the remaining option is the right one. But here I said B and C are more likely. Try these first. I have not said A and C cannot be. है ना. हाँ लॉजिकली अगर बी और सी में से ही चेक करोगे बी एलिमिनेट है तो सी है. ठीक है. बट करके देखो. सी करेक्ट. तो ऑप्शन बी देखो. बी इज व्हाट 50 SPQR. जब भी कंफ्यूजन लगे वैसे तो यू जस्ट राइट दिस इक्वेशन विद ब्लैंक्स. SPQR. S इज व्हाट डिवाइड. ठीक है. S is divide. ठीक है. Then you have P plus Q minus R multiply. ठीक है. 50 divide by 10. Now I will go by BODMAS rule. 50 divide by 10. 5. 5 plus 2 minus 3 multiply 4. यही है ना. 5 plus 2 minus 12. अब you can do left to right. Don't think about BODMAS. Confuse नहीं होना. 5 plus 2 7. 7 minus 12 minus 5. तो ये तो आंसर नहीं हुआ. ठीक है. Then you have what 50. Next option PSQR. PSQR. P is addition, S is division, Q is minus, and R is multiplication. So these are the same. These two operations have been interchanged, which means divide कहाँ होगा. 10 divided by 2. 10 divided by 2 is 5. So 50 plus 5
minus 3 multiply 4, 50 plus 5 minus 12, 55 minus 12. You will get 43. Option C is your answer. ठीक है, कौन से ईयर का क्वेश्चन है ये? 2025. ठीक है, in 2025 itself this question has been asked. ठीक है, so again a lot of students did not do this correctly. तो ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज नहीं होना. सिंपल बॉडमास का फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, students ask na which questions we have to do, which questions we do not have to do. If you have a question like this, देखो एग्जाम में there are a lot of questions which have इतनी बड़ी बड़ी statements. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज का क्वेश्चन आया था, इट हैड अ वेरी बिग स्टेटमेंट, ऑल्दो कंसेप्ट अप्लाइड वाज very small, very basic concept that was applied, but वो समझना was task for students in the given time period. ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते. प्रॉब्लम इज आपके पास टाइम की रिस्ट्रिक्शन है. इफ आई विल गिव यू लेट्स आई विल से आज क्वेश्चन पेपर लेके जाओ, 1 वीक बाद लेके आना, तो यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस दिमाग लगा के शॉर्टकट से किसी भी तरह. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव टू डू दैट इन दैट टाइम पीरियड ऑफ 2 hours. ठीक है, तो वी हैव टू सी कि कौन से क्वेश्चंस हैं दैट विल सेव आवर टाइम. This type of question, firstly, is the statement difficult to understand? नहीं, statement easy है समझना. प्लस और करना क्या है इसमें? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, which we can do. ठीक है, is the calculation difficult? No. These type of questions you have to do in the exam. They will fetch you marks. ठीक है, ये कम टाइम में हो जाते हैं and you will get accuracy from this as well. ठीक है, instead of questions with very big statement पढ़ोगे ना उतने में ही ये question हो जाएगा. ठीक है, so these are the questions that you have to do in exam. BODMAS के question आएंगे तो करने हैं. ठीक है, all right, चलो. So अभी तक yesterday session everything is clear? Why am I getting a whiteboard now? So I don't know how to operate this board. I know how to operate that one. This is different from that. Chalo, whatever. We'll use a black pen. Chalo. All right. So let's start with today's session, which is divisibility. So divisibility क्या होता है? Okay, we say 4 is divisible by 2. What do we mean by it? 4 is divisible by 2. कल भी किया था. You said all even numbers are those numbers which are divisible by 2. But I said no, change the definition. मैंने क्या definition लिखवाया था? When? अच्छा, what are even numbers? Remainder 0 when divided by 2. Even numbers are those numbers which give remainder 0 when they are divided by 2. So if I say that this number is divisible by 2, you will say yes, it means that remainder is 0 when we are dividing that number by 2. ठीक है, यही बोलोगे? इतना समझ में आया? Which means divisibility का मतलब, divisible का मतलब I should get remainder 0. If I say A is divisible by B. What do I mean by this? I mean that अगर आप A को B से divide करोगे, remainder will be 0. So 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2, 6 is divisible by 3, 6 is divisible by 1 also. ठीक है, समझ गए? That is why we say all numbers are divisible by 1 because they give remainder 0. ठीक है, divisible का मतलब समझ में आया? चलो. Now, one of the most important concept that you will understand is the concept of remainders. ठीक है, you do not have a अच्छा चलो, division में there are 4 values. ठीक है, for example यही example ले लो, you have कोई भी और ले, 23 ले लेते हैं, easier to explain. 7
3, 21, 2. ये किया है शुरू से. दिस इज डिविजन. अच्छा, इफ आई आस्क यू, यू हैव 4 वेरिएबल्स इन दिस. क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं इन डिविजन? ठीक है. डिवाइजर इज दिस 7, क्वेश्चन इज 3, डिविडेंड एंड रिमाइंडर. रिमाइंडर, अच्छा कभी आपने ये चैप्टर पढ़ा है? चैप्टर ऑफ डिविडेंड, चैप्टर ऑफ क्वेश्चन, अलग से चैप्टर था आपके सिलेबस में. डू यू नो दैट देयर इज अ टॉपिक नोन एज रिमाइंडर्स इन योर सिलेबस? आपके सिलेबस में एक टॉपिक होता है, उसका नाम होता है रिमाइंडर्स. ठीक है. इन विच वी डू रिमाइंडर थ्योरम, विच वी अंडरस्टैंड हायर पावर का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट रिमाइंडर्स. बट वी डोंट हैव एनी टॉपिक रिलेटेड टू क्वेश्चन, डिवाइजर और किसी. देयर आर 4 वेरिएबल्स ना, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन. किसी का कोई सिलेबस नहीं है. रिमाइंडर का यू हैव अ सेपरेट टॉपिक, यू गेट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिमाइंडर क्या होता है. ठीक है. एक सेकेंड, आई विल जस्ट आस्क सर टू चेंज द कलर. हाँ, could anyone just go and ask them to एक बार fix this? कुछ भी नहीं लेना. अब अगर फोमो हो रहा है ना कि हम सबके पास बुक्स है और हमने नहीं लिया है, तो यू कैन बाय राइट नाउ, बट बाय द एंड ऑफ इट, इन द लास्ट सेशन स्टूडेंट्स हैव हैड असाइनमेंट्स टैग्ड अप टू हियर. ठीक है. तो आपके पास बाय द एंड ऑफ द सेशंस यू गेट अराउंड 60-70 assignments, and these are not including your question papers. Otherwise we take question PYQs classes separately, so बहुत सारा हो जाएगा. यू वोंट नो कहाँ से क्या रिवाइज करना है. फिर भी इफ यू फील कि यू आर यू वांट अ बुक और समथिंग लाइक दैट, तो आप कर ले. ठीक है. आप देख लेना. बट अगर लग रहा है कि हम सर एक बार ये बोर्ड का कलर चेंज हो जाएगा, so you do not need to buy purchase any book. You just have to stick to your notes only. ठीक है. PYQs के लिए भी नहीं. हम क्लास में आई गिव यू टॉपिक वाइज PYQs. बाय द एंड ऑफ इट आई विल गिव यू फुल टेस्ट. अगर आपको लग रहा है कि फॉर फ्रॉम 2020 to 2025 we will discuss the complete question papers, and for the topics before those years we have sectional, topic wise PYQs. जैसे आपके इस हैंडआउट में भी लास्ट पेज चेक करो, यू हैव PYQ सेट 1. ठीक है. ये कौन से PYQs हैं? डिविजिबिलिटी से एसोसिएट. ठीक है. सो हर हैंडआउट में जो भी हम टॉपिक करेंगे उसके PYQs आपको मिलेंगे. क्या हो रहा है अब? ये है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल? ओके, ऑल राइट. चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस. अच्छा, वी वर डूइंग दिस डिविजन. सो 23 डिवाइड बाय 7, 21, you had remainder 2. ठीक है. यही किया था. Now what do we mean by remainder 2? It means that if I will divide a number 23 by 7. For example, if I have 23 candies, ठीक है, and there are 7 students in the class, you will say, ma'am, don't get 2, you are getting 2 extra candies because 21 is divisible by 7. If I want to distribute equally, I would have 2 more, 2 extra. जो भी extra value होती है, it is the रिमाइंडर. रिमाइंडर का मतलब ही यही होता है, द वन दैट रिमेन्स. ठीक है. सो इट मीन्स किसी भी नंबर को इफ यू वांट टू डिवाइड इक्वली, द एक्स्ट्रा वैल्यू दैट इज लेफ्ट इज द वैल्यू दैट यू डू नॉट नीड. ठीक है. अच्छा, इफ यू डू नॉट नीड एनीथिंग, हम क्या करते हैं उसको?
remove. So if I say number, so for the 5th time 23 को 7 से divide, ठीक है. In today's class we will learn this much only, how to divide 23 by 7, ठीक है. So you get 2 remainder which means, समझ गए, ठीक है. चलो दोबारा से फ्लो में आ जाते, which means देखो, if I say 7 का टेबल लिखे हम, अगर ये एक नंबर लाइन सबको पता है, this is a number line. If I am writing the table of 7, I have 7, 14, 21, 28, ऐसे चलता है, ठीक है. दिस इज द टेबल ऑफ 7. 23 कहाँ आएगा? इधर, ठीक है. इफ आई से 23 को मेक इट डिविजिबल बाय 7, व्हाट विल यू डू? You will divide by 7. I want you to make it I want you to make a number closer to this that is divisible by 7. आप क्या करोगे? ये 2 है, ठीक है. इसको हम क्या करेंगे? 23 में से माइनस, आई टोल्ड यू रिमाइंडर इज द वैल्यू दैट इज एक्स्ट्रा. फॉर एग्जाम्पल देखो, 7 स्टूडेंट्स हैं क्लास में. If I am getting 23 toffees, if I ask you, is it okay if I get 23 toffees to divide among 7 students? You will say no, don't get 23, get 21. Why you are saying don't get 2 more? 2 more is extra. So which means एक number है, if you are dividing it by another number, whatever is the remainder, it is the extra value. So 23 यहाँ है. To make it divisible by 7, I have to subtract 2. Then you will get to 21, which is divisible by 7. ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, कैन यू ऑल्सो से कि क्या नाम, मैम कितने कंजूस हो, 2 कम ला रहे हो, 5 और ले आओ, ठीक है. कैन यू ऑल्सो से दैट? यू कैन ऑल्सो से 5 ऐड कर दो, तो ब्रिंग इट 28. इफ आई से दैट 23 when divided by 7 leaves remainder 2, you will say 2 is extra, तो 2 subtract कर दो. या फिर the other option is add 5, ठीक है. Remainders are extra value. 2 जो है, 2 is the remainder, 2 is पॉजिटिव रिमाइंडर. रिमाइंडर को हमेशा याद रखना, रिमाइंडर्स को हम सबट्रैक्ट करते हैं. आई गेट 2 एज द रिमाइंडर, सो आई सबट्रैक्टेड इट, ठीक है. Now what do I mean by positive remainder? If I have said positive remainder, it means there must be negative remainder as well. That is why I am saying कि ये positive remainder है, कुछ negative भी होगा. It means for example, जैसे हमने 23 को 7 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर बोला 2. 2 is the remainder which I am getting. It is my positive remainder. What is the counterpart of 2? I said I will not get 2. You said get 5 more. ठीक है. Counterpart of 2 क्या हुआ? 5. Understood? For example, divide 22 by 7. Remainder will be 1. I said 1 is my remainder. I will get 1 less toffee. ठीक है. 1 is my remainder. 1 extra है. आप बोलोगे no, get 6 more. ठीक है. If let's say I have 24 divided by 7, remainder is 3. I will say 3 is my remainder. I will not get 3 more toffees. You will say get 4 more. If I have 4 as the remainder, you will say get 3 more. मैं बोलूंगी नहीं 4 ज्यादा है, मैं 4 reduce कर देती हूँ. You will say no, get 3 more. If I will say I have remainder 5. For example, if you do what 21 plus 5, 26 को divide करो 7 से, 5 remainder है. I will say I will not bring 5 extra toffees. You will say no, bring 2 more. If I will say 6, you will say bring 1 more. ठीक है, ये समझ में आया? For every remainder there is a counterpart. अच्छा, इसमें पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या पैटर्न? What is the pattern? Sum of
All of these is what? 7. ठीक है. So 7 से again दोबारा ये चीज समझ में आए? इतना सब क्लियर है? Whatever is written on that in this board is clear to you? दोबारा बता. अब I'll take another example and explain और clear हो. If I have a number, let's say 16, I have to divide this by 5. Now I am saying I have 5 students in the class and I am bringing 16 toffees. So how many toffees do I have extra? This is the remainder that you have. I said ये positive remainder होता है. ठीक है? Is this clear? आप बोलोगे I am saying 1 extra toffee है. ठीक है? आप बोलोगे I am saying I will not bring 1 extra toffee. You will say bring 4 more. आप यही बोलोगे ना 16 plus 4 is 20. You will say bring 4 more. समझ में आया? We have to see the next divisible. हाँ, next divisible number. ठीक है? So या तो तभी I said number line देखो 16, 15, 20. Either you can remove one, ठीक है? Or you can bring 4 more. I have 2 options. I am saying मैं नहीं लाऊंगी. You are saying bring 4 more. ठीक है? So again, if you have the number 17, remainder क्या आएगा? 2. What will you say bring? Bring 3 more. If I am saying 18, remainder will be? If I am bringing 18 toffees, remainder will be 3. I will say मैं 3 नहीं लाऊंगी extra. You will say bring 2 more. 20 कर दो. Understood? अब समझ में आया? If I have remainder 4, I will say I will not bring 4 more toffees. You will say bring 1 more. All of these are what? 1 plus 4, 5. 2 plus 3, 5. 3 plus 2, 5. 4 plus 1, 5. इतना क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? 7 वाला भी सबको क्लियर है? ठीक है? Which means for every remainder there is a counterpart. ठीक है? इतना समझ में आया? If I now how to find out what is the counterpart for which remainder? Let's say I am saying that 17 divided by 8. Remainder is 1. What? This is positive remainder. जो remainder आता है हमारे पास वो positive होता है. ठीक है? Positive remainder is 1. ठीक है? If I will, अब जो counterpart होता है it is negative remainder. Simple. आप जब divide करते हो the remainder that you get till now you have learned that is the remainder. That is positive remainder. ठीक है? अभी हम we have not मतलब in your school you have not learned the concept of positive and negative because teachers do not want to get you confused in the beginning when they are teaching you divisibility. ठीक है? Now we will learn the concept of negative remainder as well कि negative remainder क्या होता है. ठीक है? जो आपके पास remainder आता है it is positive remainder. I said उसका counterpart क्या होगा? Negative remainder. What will be the counterpart of 1? हमें पता है ये जो 2 रिमाइंडर्स है ना ये सम हमेशा क्या देंगे 8 always because वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 17 आई एम सेइंग कि इसका रिमाइंडर 1 है which means 1 पीछे चले जाओ. ठीक है? इफ आई कैन गो 1 बैक आई कैन ऑल्सो गो 7 फॉरवर्ड. अंडरस्टूड? सो 8 से रिमाइंडर अगर 1 है पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव क्या होगा? If remainder is 2, positive remainder, negative क्या होगा? 6. If remainder is 3, negative क्या होगा? If remainder is 4, negative क्या होगा? 4. If remainder is 5, what will be the negative remainder? 3. If remainder is 6, what will be the negative remainder? If 7, then 1. ठीक है? चलो. I get a remainder of 3 by 19, positive remainder. What will be the negative remainder? Positive remainder is 3. What will be the negative remainder? 19 minus 3, 16. ठीक है? समझे? Positive remainder plus negative remainder
is your divisor itself. मुश्किल लग रहा है? चलो फिर सबने बताना है, ठीक है, so that I know that you have understood. If I am getting a remainder of 2 when divided by 15, what will be the negative remainder? 15 से divide किया, remainder 2 आया. I told you. ये positive remainder, this is negative remainder. What will be the negative remainder? 13. ठीक है, 2 में क्या प्लस करें, that I get 15. इतना ही सोचना, ठीक है. If I get a remainder of 3, तो what will be my negative remainder? 12. नहीं समझ आ रहा? ठीक है. Online students, is it clear? If I am getting a remainder of 4, what will be my negative remainder? 11. ठीक है. If I am getting a remainder of 5, what will be my negative remainder? चलो, I am getting a remainder of 10 when divided by 100. What will be my negative remainder? 90. सबको क्लियर हुआ? कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया ये कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर? पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर डिवाइजर. ठीक है, चलो. इफ आई एम गेटिंग अ नेगेटिव रिमाइंडर ऑफ 5 when divided by 17, what will be positive remainder? 12. वो दो नंबर्स प्लस करके 17 मिलना चाहिए. ठीक है, इतना सा समझो. ठीक है, adding those two numbers you should get 17. If I am getting a negative remainder of 5 when dividing by 20, positive remainder क्या होगा? 15. ठीक है, the only thing is those two remainders should add and give you 20, 15 जो भी आपका डिवाइजर है. सब क्लियर है? ठीक है. इससे पहले डिविजिबिलिटी वाला नेक्स्ट डिविजिबल नंबर ये दूसरा कंसेप्ट, ये वही कंसेप्ट है. ये देखो, if I am saying कोई नंबर है, you are getting 2 as the remainder. Let's say you have 32. ठीक है, 32 will give you 2 as the remainder. It means 2 पीछे चले जाओ. ठीक है, और you can also go 13 forward and you will get to 45. This is that concept only. ठीक है, this part is 2, this part is 13. That is why this total is 15. पॉजिटिव 2 को पॉजिटिव रिमाइंडर इज द वन यू गेट, जो हम सिंपल डिवीजन से हमें मिलता है. एक्चुअली रिमाइंडर इज जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, तो इट इज योर डिसीजन. रिमाइंडर तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, अब आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो. ठीक है, आप समझो, वट एवर एक्स्ट्रा वैल्यू यू हैव यू सब्ट्रैक्ट इट. ठीक है, सो इफ आई से 32 डिवाइड बाय 15, रिमाइंडर इज 2. ठीक है, you will say I will subtract 2. You will say, अब देखो, you say subtract, ये अच्छे से समझ लो. Subtract the remainder to make it divisible by 15. This is what we do. This is what we do. 32 है, 2 extra है. Subtract the remainder. 32 minus 2 will be 2. Sorry, 30. And you will get a number that is divisible by 15. ऐसे ही करते हैं. Any doubt till now? I said subtract the remainder. ठीक है, you will say कि 2 is also the remainder and counterpart क्या है? 13. 13 is also the remainder. ठीक है, you will say subtract the remainder works for 2, but 13 is also the remainder. Does it work for 13? 32 minus 13 होता है 15 से divisible? नहीं होता ना. That is why I said this is negative remainder. So when you have to think of it, आप क्या सोचोगे? Subtract the remainder. The remainder here is negative 13. Subtract करो negative 13 को. ठीक है, confusing? तभी मैं अभी ये ना थोड़ी देर रुक जाओ. ठीक है, just wait for a bit. All you have to understand is there are
2 रिमाइंडर्स, पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, इतना समझो बस, ठीक है। इफ आई एम सेइंग डिवाइड, I divide a number by 9, let's say you have 12, remainder is 3, ये क्या होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर. व्हाट विल बी नेगेटिव रिमाइंडर? 9 minus 3, 6. You have a number 15 divided by 9. Remainder is नेगेटिव रिमाइंडर 3. ठीक है, सिर्फ इतना समझो. क्लियर है? एनी डाउट्स टू एनीवन? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, जो भी पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, टू मेक अ नंबर डिविजिबल, जो भी रिमाइंडर है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो. ठीक है, अंडरस्टूड? यू सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर. ठीक है, चलो. So the first thing we have understood is divisibility में remainders. What are remainders? Remainders are of two types, positive as well as negative. वो दोनों का sum will always be equal to the divisor. इतना समझ में आया? चलो. Divisibility of 2 क्या होती है? We are doing divisibility rules now. Very easy. ठीक है, अभी रिमाइंडर्स हम यूज करेंगे बाद में. डिविजिबिलिटी रूल्स. 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? How do you check? Divisibility rules are rules which help you check whether the number is divisible by that the divisor or not. ठीक है, so for example if I say 13, is 13 divisible by 2? No. Why? Because remainder is 1. So divisibility rule of 2 in general also, you want, if I say this number 1 3 2 4 5, is it divisible by 2? No. How? रिमाइंडर 0 नहीं है. ये आपने कैसे चेक किया? यूजिंग लास्ट डिजिट ओनली, है ना? You do not need to check the complete number, right? You do not need to divide the complete number. I am only using last digit. So divisibility rule of 2 is unit digit should be 0 2 4 6 8. ठीक है, or you can say if unit digit is divisible by 2, or you can say if unit digit is even. ठीक है, अंडरस्टूड? यूनिट डिजिट अगर इवन है तो नंबर डिविजिबल बाय 2 है, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. दिस मच इज अंडरस्टूड टू एवरीवन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस अंडरस्टूड? ओके, चलो. डिविजिबिलिटी बाय 3. डिविजिबिलिटी बाय 3. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? 3 का क्या होता है? लास्ट? नो नो. चलो, डिविजिबिलिटी देखो, 2 के लिए हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं बिकॉज वहां से भी गेट द रिमाइंडर. इन केस ऑफ 3 यू हैव टू डू सम ऑफ डिजिट्स. याद आया? इफ sum of digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. For example, you check here, you have 3 का टेबल लिखो. 3 6 9 12 15 18. सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 1 plus 2 3, 1 plus 5 1 plus 8 9, 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9. Sum of digits is divisible by 3. Any other number you take. 27. 27 क्या होता है? 9 is divisible by 3. ठीक है, so for 3 any number, for example 1 5 2 and 8, is it divisible by 3? Is it divisible by 3? करो. No. 8 plus 2 10, 5 plus 1 6, 16 आ रहा है. The sum is 16. It means it is not divisible by 3. ठीक है, if I say 1527 now, अब sum क्या हो जाएगा?
15 means it is divisible by 3. समझ में आया? Is it clear? सबको clear है? Divisibility rule of 3. चलो check for this. 3, 6, 9, 4, 1, 1, 3, 2, 7, 8. Check करो whether these two numbers are divisible by 3 or not. No, ma'am. No, all you have to add all the digits. Sum of all digits. This you have to. Sum of all digits of a number. ठीक है? B. A देखो. Okay. ठीक है? 3 plus 6 plus 9, 9 plus 1, 10. 3 plus 6, 9. चलो ये कर लो. 10, 20, 23. Not divisible by 3. ठीक है? Then you have option B. 1, 3, 2, 7, 8. Sum of all of these. 2 plus 7, 9. 2 plus 8, 10. 10, 20, 21. Divisible by 3. It means ये number भी divisible by 3 होगा. Not divisible by 3. Then this one. 5 plus 4, 9. 2 plus 7, 9. 9, 9, 3. Obviously divisible by 3. समझ में आया? Clear है? Divisibility rule of 3 is clear to everyone. अच्छा, तो divisibility rule of 4. अच्छा, 2 का रूल क्या था? लास्ट डिजिट. 4 व्हाट इज 4? 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2. ठीक है? 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर. ऐसे ही याद रखना बस ये. आई विल टेल यू द पैटर्न दैट सीरीज फॉलो. ठीक है? 4 2 स्क्वायर होता है. 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल इज चेक फॉर लास्ट 2 डिजिट्स. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू check whether this number is divisible by 4 or not. Is it divisible? Last 2 digits क्या है? 24. Is 24 divisible by 4? 24 आता है 4 के टेबल में. It means it is divisible. You have 1, 4, 5, 7, 6, 0. Is this number divisible by 4? Yes, because last 2 digits are divisible by 4. Last 2 digits are divisible by 4. Is this number divisible by 4? No, because last 2 digits are not divisible by 4. ठीक है? Also 91 odd ही है. तो odd है तो कैसे divisible होगा? 2 से ही divisible नहीं है, 4 से कैसे होगा? Understood? So चलो, divisibility rule of 2 क्या था? Unit digit. Unit digit check करना था. Unit digit should be even means 0, 2, 4, 6, 8. ठीक है? Divisibility rule of 3. Sum of all the digits should be divisible by 3. Divisibility rule of 4. Last 2 digits should be divisible by 4. ठीक है? In case of power of 2. For example, 2 to the power 1, 2. 2 square क्या होता है? 2 cube will be 8. ठीक है? 2 to the power 4 will be 16. इन नंबर्स का डिविजिबिलिटी इज ऑलवेज चेकिंग फॉर लास्ट n डिजिट्स. n मतलब 2 की पावर. ठीक है? तो अगर आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, लास्ट 1 डिजिट मतलब यूनिट डिजिट चेक कर लो. लाइक 1 5 3 7 2 9 2. इज इट डिविजिबल बाय 2? चेक ओनली फॉर 2. अगेन 2 स्क्वायर 1 5 2 7 2 9 4. इज इट डिविजिबल बाय 4? It is divisible by 4. 96 होता है 4 से divisible, तो 94 कैसे होगा? It is not divisible by 4. Why? Checking for last 2 digits. If I say, is it divisible by 8? What will you check? Last 3 digits. 2 की power
3. So for 8 I will check last 3 digits. For 16 I will check last 4 digits. ठीक है? 2 to the power 5 is 32. For 32 you will check last 5 digits. इतना बड़ा divisibility नहीं आता है. Still I am telling you. If I have 2 to the power 10, you will check last 10 digits. 2 to the power 10. 1024. तो last 10 digits. जो भी 2 की पावर है उतने लास्ट डिजिट्स. 2 to the power 7. So last 7 digits चेक करोगे. ठीक है? अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो. So एक बार दोबारा देखो. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होगा? लास्ट 2 digits. Why 2? Because 2 to the power 2 is 4. Divisibility rule of 8 क्या होगा? Why 3? Because ठीक है. Divisibility rule of then you have 16 is what? Last 4 digits. Why 4? Because 4 is 16. ठीक है. 32 last 5 digits because 2 to the power 5 is 32. तो last 5 digits. 4 तो last 4 digits. 3 last 3 digits. ठीक है? क्लियर है? ओके. चलो. If I get a remainder of 2 when I divide by 13, what will be the negative remainder? 11. ठीक है? याद रखना है. 2 13 से डिवाइड किया तो 13 minus 2 सीधा. If I get a remainder of 5 when I divide by 19, what will be the negative remainder? 14. If I get a negative remainder of 7 when I divide by 19, what will be the positive remainder? 12. सिंपल. जो भी रिमाइंडर गिवन है माइनस कर दो. ठीक है? यू विल गेट द काउंटर पार्ट. ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 लास्ट 4 digits. Why 16 is 2 to the power 4. ठीक है? आ गया समझ? चलो. नाउ यू हैव हमने कर लिया 2 3 4 5. ये ना सारे यू ऑलरेडी नो दीज रूल्स, यू जस्ट नॉट नो हाउ टू राइट देम. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या होता है? यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5. ठीक है? क्लियर सी बात है. इफ आई आस्क यू 1 3 2 1 4 1, इज इट डिविजिबल बाय 5? नो. ठीक है? व्हाई? बिकॉज लास्ट डिजिट इज 1. लास्ट डिजिट शुड बी 0 और लास्ट डिजिट शुड बी 5. कोई भी और डिजिट आ सकता है इन दिस प्लेस. कैन यू गेट एनी अदर डिजिट? ठीक है? कोई भी और डिजिट नहीं आ सकता ना. 0 आएगा या 5 आएगा. इफ यू हैव 2 इट विल नॉट बी डिविजिबल. ठीक है? विच मीन्स देखो आपके ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले ये समझो 5 का टेबल क्या होता है. 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5. 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 0 5 0 5. ठीक है? ये कैसे आ रहा है? 5 को अगर हम किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई गेट 5. 5 को इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय इवन नंबर, आई गेट 0. ऐसे ही हो रहा है. देखो एक बार चेक करो. ठीक है? ऐसे ही है. ओके. इफ आई डू 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये क्या आएगा? 2 multiply 3 is 6. Basically what I am doing is 5 multiply 6. 6 क्या होता है? Even. Because जहां पर भी 2 आ गया पूरा नंबर क्या बन गया? Even. Because multiplication है. 5 multiply 6 30. Last digit 0. ठीक है? So आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है. What is the unit digit? 1932 multiply 75 multiply 234 multiply 57 multiply so on. ठीक है? What is the unit digit? ऐसे करके you have 3-4 numbers more. अब देखो if I say इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 0. If I say 2 multiply 5,
10, ये तो आएगा ही ना। 52 मल्टीप्लाई 75, मतलब यहाँ पर 2 है एंड इधर यू हैव 5. अंडरस्टूड? 52 में यू हैव अ 2 ना, 2 मल्टीप्लाई 26. 75 में यू हैव 5 मल्टीप्लाई 15. सो 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10. जहां पर भी 5 एंड इवन नंबर आ गया तो ये सब हमने चेक ही नहीं करना होता. वी सेड अच्छा यू हैव अ 5 हियर, you have 5 here and you have 2 here, unit digit will be 0. ठीक है? We will do these questions also बाद में unit digit के टॉपिक में, but you should know कि 5 को जब हम even से multiply करते हैं you get 0. If you multiply 5 by any odd number you get 5. ठीक है? 5 के there are only 2 options that you can get, either 0 और 5. ठीक है? Clear है? Divisibility rule of 5 क्या होता है फिर? Unit digit should be 0 or unit digit should be 5. Next, divisibility rule of 6 क्या होगा? अच्छा, अभी तक the numbers we have done were 2, 3, 5 and 4. यही numbers किए हैं अभी तक. 2 क्या होता है? Prime number. 3 prime number. 5 prime number. 4 है 2 की power. 6 में we have the first composite number which is प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स. ठीक है? 4 was a composite number. कल किया था ना, 4 is the smallest composite number, but 4 is 2 multiplied 2. एक ही प्राइम नंबर से बना हुआ है. रिपीटिंगली यू आर मल्टीप्लाइंग 2 ओनली. 6 is the first number जिसमें you are getting 2 multiply 3, दो प्राइम नंबर्स. whenever you get a composite number 2 and 3, ठीक है? 6 क्या है? composite number. प्राइम की डिविजिबिलिटी से चेक होगा. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन वी विल से इट इज डिविजिबल बाय 6. समझ में आया? अगेन दोबारा देखो, 6 क्या होता है? 6 is 2 multiply 3. ठीक है? So if I have to check 36, is it divisible by 6? If I have to check this, हम क्या करेंगे? 2 से चेक करेंगे पहले. 36 is it divisible by 2? divisible by 2? Yes. Is it divisible by 3? कैसे? 3 plus 6 9. 9 is divisible by 3. 36 is divisible by 3. Yes, it means it is divisible by 6. Understood? अब समझ आया? चलो, if I say 157, is it divisible by 6? सबसे पहले 2 से चेक करेंगे. 157 इज इट डिविजिबल बाय 2? जब 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा. यू वांट द नंबर टू बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. ठीक है? समझ में आया? इफ आई से 156, इज इट डिविजिबल बाय 6? ठीक है? 156 इज इट डिविजिबल बाय 2? Is it divisible by 3? 5 plus 1 6. 6 plus 6 12. So divisible by 3 also. It means it is divisible by 6. समझ में आया? ठीक है? क्लियर है? Both 2 and 3. तभी I said and. ठीक है? And means ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. You should be satisfying both the conditions. ठीक है? So if I ask 128, is it divisible by 6? It is divisible by 2. 128 is divisible by 2. Divisibility by 3 check करो. 8 plus 2 10 plus 1 11. Not divisible by 3. So 128 is not divisible by 6. Understood? समझ में आया? Okay. 7 का there is a divisibility rule, but I will not do that. मतलब हम I will not tell you. 7 के लिए check कर लेना कोई भी number, because ये जो divisibility rule है 7 का, actually it is useless also and ये हर जगह applicable भी नहीं होता. The rule is that आपको ऐसे check करना होता है. For example, if I give you this number, ठीक है, this is a number
लास्ट नंबर को 6 मल्टीप्लाई 2 और समथिंग लाइक दिस, जैसे 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके जो द नंबर दैट यू विल गेट, you have to check whether this is divisible by 7 or not. ठीक है, तो ये करते रहना है. ये आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे, you will not get a very shorter number. तो अगर ये ही चेक करना है, इससे बेटर है ये चेक कर लो, why to do all of this calculation. ठीक है, तो 7 का divisibility also this does not work for all numbers. So for 7, for 13, for 17 and 19 there is no fixed divisibility rule. These are the numbers जिसके लिए आप ना चेक कर लेना whether it is divisible or not. ठीक है, बट आई वोंट से दैट देयर इज अ डिविजिबिलिटी रूल दैट विल वर्क फॉर ऑल द केसेस, सो आई नेवर टीच इट. ठीक है, तो हम 7 का नहीं करेंगे. आई वोंट एडवाइज यू टू डू यूजिंग डिविजिबिलिटी ऑफ 7. देन वी हैव 7 के बाद देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 का यूनिट डिजिट चेक करना होता है, 3 का सम ऑफ डिजिट्स, 4 का लास्ट 2 डिजिट्स, 5 का 6 का 2 and 3 से चेक, 7 का नॉट एप्लीकेबल, 8 का लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 बिकॉज 8 क्या होता है लास्ट 3 डिजिट्स. ठीक है, 9 का सेम एज 3. ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9. ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट, याद है वी यूज्ड टू डू दिस 9 का टेबल, आई थिंक स्कूल में आपने किया होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते थे. then you have to 9 and then 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. I remember students used to love writing 9 table. ठीक है, तो क्या होता है 0 plus 9 9, 1 plus 8 9, 2 plus 7 3 plus 6 4 plus 5. ठीक है, 9 आएगा ना सम, 9 is divisible by 9. So for any number you have to check if the sum of digits is divisible by 9, that number is divisible by 9. For example, अब ये 2 digit numbers थे, तो इनका sum आता ही 9 था. ठीक है, because they are all 2 digit numbers ना, and 9 के table. So for example, if I will give you this 5 4 2 7 3 6, is it divisible by 9? 5 plus 4 9, 2 plus 7 9, 3 plus 6 9. Adding all of this you get 27. Is 27 divisible by 9? Which means this number is also divisible by. Also you could have checked 54. ठीक है, बाद में ये फिर से पढ़ेंगे कि ऐसे क्यों किया. ठीक है, understood? Divisibility rule of 9 is clear to everyone. Online students, is it clear? So 1 to 10 we know divisibility rule of all the numbers. ठीक है, चलो, then we have 11, most important and the one in which students feel कि complicate हो गया थोड़ा. ठीक है, याद है 11 का divisibility rule? divisibility rule of 11 क्या होता है, divide by 11, can we divide by 11? चलो, और rule क्या होगा, if I ask you 1 2 3 4 5 4 3 2 1, is it divisible by 11? अभी इतना सा देखो, इतना बड़ा नंबर आ गया, इज इट डिविजिबल बाय 11 चेक करना. ठीक है, सो इफ फॉर एनी नंबर, अच्छा इफ आई से 121, इज इट डिविजिबल बाय 11? व्हाई? 121 11 का स्क्वायर होता है, याद है ना, 121 इज स्क्वायर ऑफ 11. ठीक है, सो 121 इट इज डिविजिबल बाय 11. For any number, if you have to check whether that number is divisible by 11 or not,
आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 लेट से इस नंबर को चेक करना है, ठीक है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है, ऐसे लिखना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसे लिखना है। वाई एम आई राइटिंग दिस, ये भी समझ लो। ये यूनिट्स प्लेस है, फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस क्या होती है, फर्स्ट क्या होता है, ऑड। वन इज एन ऑड नंबर ना, वन इवन तो नहीं होता, ठीक है, वन तो ऑड। सेकंड प्लेस इज इवन प्लेस, तो इवन। थर्ड प्लेस इज ऑड प्लेस, so ऑड। फोर्थ प्लेस इज इवन प्लेस, so इवन। फिफ्थ ऑड। ये इसके पीछे लॉजिक है। नहीं भी समझ में आ रहा है या नहीं समझने का मन है दिमाग में और इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है तो सिंपल लिख लो ऑड इवन ऑड इवन ऑड। डिविजिबिलिटी बाय 11 आया तो फर्स्ट स्टेप शुड बी ऑड इवन ऑड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर्स है, 5 3 1, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं कंफ्यूज होना कि 2 है तो इवन है, दोबारा भी कर। 5 प्लस 3 प्लस 1, ये क्या हुआ, सॉरी 9। एंड इवन प्लेसेस में क्या सम है, 2 प्लस 4 6। 9 माइनस 6 is 3 divisible by 11. It means this number is also not divisible by 11, ठीक है, समझ में आया। दोबारा देखो एक और नंबर लेते हैं, 3 4 2 2 3, ठीक है। अब ऑड इवन, यहाँ क्या आएगा, ऑड। प्लेस चेक करनी है, नंबर पे डिपेंड नहीं करता। इफ आई से ए बी सी डी ई एफ, दिस इज अ नंबर, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दिस डज नॉट मैटर, सिंपली ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है, अंडरस्टूड। सो इट डज नॉट मैटर ऑन दैट नंबर, ठीक है, क्योंकि आप ये नंबर भी तो चेक करोगे ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, वेरी वेरी स्मार्ट। फेस वैल्यू देखनी है, प्लेस वैल्यू देखनी है, फेस वैल्यू नहीं, ठीक है। ऑड इवन ऑड, ठीक है। तो फेस वैल्यू नहीं देखनी, प्लेस वैल्यू देखनी है। ओके तो ऑड क्या है, और ये भी समझ नहीं आया, प्लेस वैल्यू होती है, यूनिट्स प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस वैल्यू देखनी है, फेस वैल्यू नहीं देखनी कि 3 है 2 है 2 है। ओके अब समझ में आया, तभी तो मैंने बोला वेरी क्लेवर। 3 और प्लेसेस में क्या है, 3 2 एंड 3। इवन प्लेसेस में क्या है, 4 एंड 2, ठीक है। ये कितना आया, 6 7 8 एंड दिस इज 6। 8 माइनस 6 2। इज 2 divisible by 11? नो, इट मीन्स दिस इज नॉट divisible by 11, ठीक है। अब अगर मैं ये नंबर लिख लूं 3 5 2 3 3, ये चेक करना 3 5 2 3 3, is it divisible by 11 or not? No? बोरिंग तो नहीं लग रहा सीसा, नहीं divisible नहीं है, why? So is 0 divisible by 11 or not? Divisibility की definition क्या होती है, remainder should be 0, 0 divide by 11, बिल्कुल। I told you whenever you have to whenever you get confused in number like 0 negative, go back to the definition, ठीक है। divisibility is 0 divisible by 2? Yes, तभी हम बोलते हैं ना 0 is an even number. Why is 0 divisible by 2? Because it gives remainder 0 when divided by 2. So is 0 divisible by 11?
यू हैव टू चेक रिमाइंडर क्या आएगा। 0 को 11 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर शुड बी 0, ठीक है। इज 0 डिवाइड बाय 11, रिमाइंडर विल बी, इट मींस इट इज डिविजिबल, ठीक है। सो ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, ऑड प्लेसेस पे क्या सम है, 3 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 8। इवन प्लेसेस पे सम इज व्हाट, 5 प्लस 3, it is 8, which means I get 0. It means 0 is divisible by 11. So the number is also divisible by 11. Any doubt till now? 11 की divisibility तक 1 to 11. Any doubt till now? ठीक है, चलो। अच्छा 12 कैसा नंबर, 11 भी क्या था, प्राइम नंबर। 11 is also a prime number ना, why? Because divisible by 1 and itself it has exactly 2 factors, ठीक है। चलो उसके बाद 12, is 12 a prime number? No, 12 is composite number, ठीक है। तो हम जैसे 6 के लिए we checked for 2 multiply 3, ठीक है। 12 के लिए क्या चेक करेंगे, 12 की थोड़ा, do you know a little bit of factorization? Like I can write 12 as 2 multiply 2 multiply 3, ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 is 4, 4 3 is 12, ऐसे लिख सकते हैं ना 12 को, ठीक है। Since you have two 2's and we know the we know the divisibility of 4, पता है ना 4 की divisibility is different, so 4 multiply 3। तो जैसे हमने 6 के लिए 2 and 3 का चेक किया था, for 12 we will check for 4 and 3, understood? Combining the like numbers, जैसे 2 and 2 है उनको आप combine कर दो। For example, if I had divisibility of, let's say you want to check divisibility of 2 multiply 2 4, 3 multiply 3 9, 36। 36 क्या है, composite number। सबसे पहले will I write it like this, ठीक है, 2 multiply 2, 3 multiply 3। Yes, Pravvi, 0 is divisible by all numbers, ठीक है, एक्सेप्ट 0, 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, वो नहीं आप डिवाइड करते हो, ठीक है, बिकॉज हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो 2 multiply 2, 3 multiply 3, 2 और 2 को कंबाइन कर दिया, वी गेट 4, 3 एंड 3 को कंबाइन किया, यू गेट 9। सो 36 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, चेक फॉर 4, चेक फॉर 9, अंडरस्टूड, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा नंबर हो 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5, 90, इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, 2, 2 तो, इज देयर एनी अदर 2? नो, तो इसको एज इट इज लिख दे। 3 multiply 3, देयर आर 2 3s, तो 3 को कंबाइन करेंगे, व्हाट विल यू गेट, 3 multiply 3 9 एंड 5। सो इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, 2 9 5 से चेक करो, if the number is divisible then it is divisible by 90 also. For example, if I give you this 2 7 2 7 9 0, is it divisible by 90? 2 से डिविजिबल है, सॉल्व नहीं, लिखना नहीं है, देखो 2 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 2 प्लस 7 9, 2 प्लस 7 9, 9 और 9 18 प्लस 9 27, ठीक है। 9 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 90। अगेन ये देखो 2 7 2 7 9, इज इट डिविजिबल बाय 90? 2 से डिविजिबल है, नो, इट मींस 90 से नहीं। अगर एक से भी नहीं होगा, इट मींस इट इज नॉट डिविजिबल। ऐसे देखो अब, ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, बट क्या 2 से डिविजिबल है, तो इट इज नॉट डिविजिबल।
समझे? तीनों से डिविजिबल होना चाहिए. फॉर एनी कॉम्पोजिट नंबर यू हैव टू मेक इट लाइक दिस. ठीक है. अब लेट्स से 10 है. 10 की डिविजिबिलिटी मतलब यू हैव टू चेक फॉर 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5 लिखते हैं ना प्राइम फैक्टर्स में. 10 क्या होता है? 2 5 10 होता है ना. 2 and 5. सो 10 के लिए वी चेक फॉर 2 एंड वी चेक फॉर 5. और वैसे 10 का क्या शॉर्टकट होता है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए. ठीक है. ये तो होता है. सो अभी नाउ वी हैव डन फॉर 11 ऑल्सो, 12 ऑल्सो. 13 का आई टोल्ड यू कि डोंट डू डिविजिबिलिटी रूल. देखो अभी 13 का इट इज गिवन ऑल्सो, रिमूव द लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर. बट देखो ये 2002 में इट डज नॉट वर्क. तो जब हमें पता ही है कि इट वोंट वर्क फॉर सर्टेन नंबर्स, देन वी कैन नॉट बी श्योर फॉर दैट रूल. ठीक है. ओके. एक minute. Certain rule is that divide into factors which have no, yeah, see factors which have no prime factors common are co-prime numbers, and I have not taught this right now because हमने factors ही नहीं पढ़े. That is why I am explaining you like this. For 13 we can do it like this. Blocks of 3 starting. Actually this rule is for 7 also, but it does not work in every case. नो देर इज. देखो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा 13, और इसका कोई एक ऐसा रूल नहीं होता जो हर केस में वर्क करे. प्लस डिविजिबिलिटी के ना दीज डेज यू डू नॉट गेट डायरेक्ट क्वेश्चन कि इज इट डिविजिबल बाय 13. ऐसा क्वेश्चन नहीं आता. तो व्हाई शुड वी लर्न अ रूल दैट विल नॉट इवन वर्क एंड वी डू नॉट इवन नीड दैट मच. तो उसके लिए क्यों करना. ठीक है. यू हैव डिविजिबिलिटी बाय 4. अच्छा 14 क्या है? इज इट अ प्राइम नंबर? 14 प्राइम नंबर होता है? सोचना भी क्यों है? इवन है तो प्राइम कैसे होगा? ओनली 2 इज द इवन प्राइम ना. 14, तो 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 × 2 14 होता है. ठीक है. ऐसे देखो ना 14 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 से. मतलब 2 7 14. फर्दर इसको कर सकते हो आप कोई डिस्ट्रीब्यूट. 2 and 7 दोनों प्राइम नंबर्स है तो आप नहीं लिख सकते एज एनी अदर नंबर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 75. ठीक है. 75 को इफ आई डिवाइड बाय 3 आई गेट 25. ठीक है. तो 75 is 3 × 25, but I know 25 को I can further write as 5 × 5. तो फाइनली हम ये लिखेंगे उसको. ठीक है. तो ऐसे 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 क्या होता है? 2 × 7. इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. ठीक है. इन द क्लास ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एवरीथिंग. अभी आप इसको ऐसे समझ लो. इतना मुश्किल तो नहीं है ना समझने में. ठीक है. तो 14 2 × 7. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल्सो. ठीक है. अभी के लिए सिंस दे आर स्मॉल नंबर्स एंड बिफोर प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव टू डू डिविजिबिलिटी. तो ऐसे समझ लो 14 इज 2 × 7. ठीक है. तो अगर आपको 14 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो आप कैसे करोगे? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, नंबर शुड बी divisible by 7. If it is divisible by both, it means it is divisible by 14. क्लियर है? ठीक है. समझ में आया? एनी डाउट टिल नाउ? 15 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे? 15 क्या होता है? 3 × 5. सो चेक फॉर 3 ऑल्सो, चेक फॉर 5 ऑल्सो. नहीं समझ आया? आ गया. 20 के लिए क्या करेंगे? 20 क्या होता है? 2 × 2 × 5. I said combine common जो combine similar numbers. 2 × 2 सेम नंबर है ना, इनको कंबाइन कर दिया तो क्या आया? 20 is what? 2 × 2 × 5. यही होता है. इनको कंबाइन. 4 × 5. 4 से चेक करो, 5 से चेक. ठीक है. ओके. चलो. अच्छा 24 के लिए क्या चेक करेंगे? 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 24 के लिए क्या चेक क
24 क्या होता है? चलो एक बार लिखो, हाउ कैन यू राइट 24? 2 6 एंड 3 नहीं, 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 12 होता है, 2 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, 12 की फर्दर 6 मल्टीप्लाई 2, 6 की फर्दर 2 मल्टीप्लाई, अब कर सकते हो? कैन यू डू? अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है आगे और नहीं हो सकती ना, अब तो 2 3 रह गया, ठीक है, 2 2 एंड 2 को आप कंबाइन करोगे, दे आर सिमिलर, दे आर द सेम नंबर्स, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 8, सो 8 मल्टीप्लाई 3, तो 24 के लिए आप क्या चेक करोगे? 8 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8? 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, सो लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है. चलो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन, 0 2 4 6 8, ठीक है. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, sum of digits should be divisible by 3. Divisibility rule of 4, last 2 digits. Why last 2 digits? 2 की पावर 2 होता है. What is divisibility rule of 5? 0 and 5 होना चाहिए. If I say 25024, is this number divisible by 5? लास्ट डिजिट क्या है? 4, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 0 या 5 होना चाहिए. अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 का लास्ट 2 डिजिट कैसे? 6 कॉम्पोजिट नंबर होता है, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 से चेक करोगे और 3 से चेक करोगे. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 हम नहीं करते. 8 क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट्स. वाई? बिकॉज 2 की पावर 3. व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, लास्ट में 0 होना चाहिए. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ऑड इवन, जो डिफरेंस है, सम ऑफ ऑड किया, सम ऑफ इवन किया, डिफरेंस बिटवीन देम शुड बी डिविजिबल बाय 11. वो डिफरेंस ऑड माइनस इवन भी हो सकता है, इवन माइनस ऑड भी कर सकते हो. कैसे आएगा ये देखो, 2 अगर ऑड माइनस इवन है, लेट्स से यू हैव 2 माइनस 3, ये क्या आएगा? -1, ठीक है. और 3 माइनस 2, ये क्या आएगा? 1. इवन माइनस ऑड ये आएगा ना, तो यू हैव टू चेक -1 इज डिविजिबल या 1 इज डिविजिबल. फॉर एग्जांपल, अगर ऑड माइनस इवन -11 आता है, इफ ऑड माइनस इवन इज 11, इवन माइनस ऑड क्या होगा? -11. 5 minus 2 is 3. 2 minus 5 is what? -3. ठीक है, तो ये क्या होगा? -11. 11 अगर डिविजिबल है, -11 भी डिविजिबल है. अगर वो डिविजिबल नहीं है तो दूसरा भी डिविजिबल नहीं है, तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस. नंबर तो सेम ही आएगा, ओनली साइन विल बी डिफरेंट. एंड साइन से हम डिविजिबिलिटी चेक नहीं करते, इट डजंट मैटर. इफ 11 इज डिविजिबल, -11 इज ऑल्सो गिविंग यू रिमाइंडर 0 ना, ठीक है. चल, सो ऑड माइनस इवन करो या इवन माइनस ऑड करो, एक ही बात है, ठीक है. चलो, अच्छा, 11 के बाद 12 का डिविजिबिलिटी रूल. 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कैसे करोगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 एंड 2 को आप कंबाइन करते हो, क्या बनता है? 4. 4 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स क्या हुआ? 4 से चेक करो और 3 से चेक करो. डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 30 क्या होगा? 30. करो करो. 3 2 एंड 5. 30 क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 10. 10 इज व्हाट? 2 मल्टीप्लाई 5. तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का ऐसे कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 10. आर देयर एनी सेम नंबर? नो, कंबाइन नहीं करना. इट मींस चेक फॉर ऑल 3, ठीक है. अगर 3 एंड 2 से डिविजिबल है बट 5 से नहीं है, देन कैन आई से द नंबर इज डिविजिबल बाय 30? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2 दोनों से, बट 5 से नहीं है, तो क्या 30 से होगा? वी नीड इट टू बी डिविजिबल बाय ऑल 3, ठीक है. ये समझ में आया? नो,
फिर 15 के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल फिर से 3 × 5 करोगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई सेड सिर्फ आप सेम प्राइम को कंबाइन करो. 3 and 5 are not same, so don't combine them, because afterwards you will get 15, then you will again distribute 15, 3 × 5, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। योर असाइनमेंट ना, यहाँ पर देखो इन द वेरी टॉप, ये पेज नंबर होगा 11, you have type 1 questions. Usually in the beginning of every topic I have to explain a lot, after that you will do practice questions, ठीक है। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा you might think कि हम बस सुन ही रहे हैं, practice कब करेंगे, questions are interesting। चलो, you have type 1 questions, the number you have to check ये number किस किस से divisible होता है। On page number 11, see, इससे पहले भी there are a few questions, but those are mixed questions. We will do them later on. पहले we will do type wise. 29 के बाद चलो ये करो, first 3 questions. The number 34560 is divisible by, you have to check for 5, 12. Page 11. मिल गया सबको? You do not have the answer key with this assignment. I'll get it uploaded tomorrow separately. D है 5 and 9 12 से नहीं होता। What is the divisibility rule of 12? 4. Done? C? देखो online students, what is the answer for the first question? 34560. अच्छा, is it divisible by 5? पहले ये बताओ, 5 से divisible है? Why? Because last digit 0 है, ठीक है। and 9 से divisible है? Is it divisible by 9? 34560 है ना। 3 plus 4 is 7, 5 plus 6 is 11, 7 plus 11 18, 18 is divisible by 9, so this number is divisible by 9, ठीक है। अब हमारे पास the only problem we have is 12 से check करना, ठीक है। we have this number क्या है, 34560, you have to check by 12. I know 12 से check करने के लिए I have to check by 3 and 4, ठीक है। So sum of digits क्या था इसका, 18. Is it divisible by 3? It means the number is divisible by 3. 4 के लिए हम क्या check करते हैं, last two digits. Is it divisible by 4? It means the number is divisible by 4. तो it means the number, जब यहाँ दोनों जगह ऐसे ही करना, अभी शुरू में ऐसे ही टिक करके करना। When you have ticks on both places, it means 3 is also, it is divisible by 3 also, it is divisible by 4 also. It means it is divisible by 12. So 5 से भी divisible है, 9 से भी है, 12 से भी, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, if a number is divisible by 9, I'm asking this question to all of you. If a number is divisible by 9, will it be divisible by 3? Will it be divisible by 3? If a number is divisible by 8, will it be divisible by 2?
8 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा ही, बिकॉज 2 उसका एक फैक्टर है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, विल इट बी डिविजिबल बाय 3? Yes, ma'am. सोचो सोचो. Yes, ma'am. 3 to 2. उसका 3 उसका फैक्टर है ना. अगर वो 6 से डिविजिबल, अभी हमने किया, अगर 3 से डिविजिबल है एंड 2 से डिविजिबल है, both, only then it is divisible by 6. It means अगर वो 6 से divisible है तो तभी divisible हुआ होगा ना कि वो दोनों से, it is passing that divisibility rule, it is passing that test. वो टेस्ट क्या था? 3 से भी divisible होना चाहिए, 2 से भी divisible होना चाहिए. Understood? So which means if a number is, let's say a number is divisible by 9, is it divisible by 3? 9, is it divisible by 3? होगा. तो इसमें should I even check for divisibility of 3? 9 से चेक कर लिया डिविजिबल है, तो 3 से अपने आप ऑटोमेटिकली वो डिविजिबल है. ठीक है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 54, इज इट डिविजिबल बाय 2? Yes, ma'am. बिकॉज 54, जब 2 54 को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर को भी डिवाइड करे. ठीक है, समझ गए? ओके, ऑल राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज 9876. बी, 2 and 6. इज इट पॉसिबल कि वो 2 से डिविजिबल हो, 6 से हो, बट 3 से ना हो? सम क्या है? सम इज 29. 18 है. थर्ड वाले का. सेकंड क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग. तो आप चलो, अगर हम सम में देखो, जब आपके पास आंसर आता है ना, खुद भी देखो कैसे चेक कर सकते हो वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. यू सेड दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 6. ठीक है, आपने ये बोला. अब मुझे एक बात बताओ, आई जस्ट टोल्ड यू, अगर एक नंबर 6 से डिविजिबल है तो विल इट बी डिविजिबल बाय 3? Yes, ma'am. ये होना ही चाहिए. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आंसर दो 2 and 6 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 की डिविजिबिलिटी रूल उसने पास कैसे की? अंडरस्टूड? ठीक है. सो आप व्हेन यू यू नो आंसर द क्वेश्चन, यू कैन चेक इट योरसेल्फ आल्सो कि आप किसको एलिमिनेट करो. लेट्स से आप बोलते 2 and 6 से डिविजिबल है बट नॉट बाय 7, तो आप, आई वुड हैव सेड ओके इट इज पॉसिबल. बट इफ यू से it is divisible by 2 and 6 but it is not divisible by 3, तो when you say when you said this is the answer, I said it is not possible कि वो 6 से divisible हो but 3 से ना हो. If you will say there is a number, it is divisible by 12 but it is not divisible by 3, I will say it is not possible. ठीक है, क्योंकि वो 12 से divisible है तो उसके फैक्टर जो है 3 3 4 6 2 उससे भी divisible हो. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया. 9876. 9876. 9 plus 6 15, 8 plus 7 15, sum is 30. So it means it is divisible by 3. Even number है, it means it is divisible by 2. 2 and 3 से divisible है, it means it is divisible by 6. So 2, 3 and 6, all 3. Understood? Third question, what is the answer for the third question? 14580. अच्छा, is it divisible by 10? It means it will be divisible by 5 also. तो 10 और 5 इकट्ठे ही आएंगे, चेक ही नहीं करना 5 से. ठीक है. So sum of digits will be what? 8 plus 1 9, 4 plus 5 9, 9 plus 9 18. So sum of digits is also divisible by 9. It is divisible by all three. समझ में आया? This is your first type of question जहां पर आपको divisibility check करनी हो. चलो, do question number 6.
Question number 4 also. 4 and 6. How many of you revised whatever we did in the class yesterday? वो घर जाके how many of you revised? किया था? ठीक है. So again, कल की you must have observed that कल की class से आज में we have done a lot more. ठीक है. So it will keep on rising eventually. So if you will not revise whatever we have done in the previous class, you will lose your edge. तो आज भी क्या करना, सारा कुछ रिवाइज करना है फिर से जाके. You have to firstly revise this and then for the first class as well. ठीक है. For sixth question, चलो, I told you to do sixth, so पहले sixth discuss. 4 का A है. चलो, I will check. ये देखो, आपके पास है sixth. हाँ जी, 6 का C होना चाहिए. देखो क्यों नहीं होगा. 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाओ. 5 after the class you do get class notes na, this board presentation you do get na in your group or whatever. I'll tell them to send you this PPT. ठीक है, so that आप revise कर पाओ. Type 6 is what? Type 1, question number 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, this is the number. देखो A तो हो ही नहीं सकता. Is it divisible by 5? Last digit क्या है? 5. It is divisible by 5. A तो possible ही नहीं है. A बोल रहा है 11 and 3. तो 5, A is neglecting, A is eliminating 5 ना. 5 तो है ना आंसर. ठीक है. So 1 2 3 4 5. अच्छा, is it divisible by 5? Yes. Sum of digits क्या है? 5 6 are 30. Is it divisible by 3? Yes. तो मतलब this number is also divisible by 3. Check for 11. Odd, even, odd, even, odd, even. What is the sum of all odds? 5 plus 5 plus 5. 15. What is the sum of all evens? 15. So odd minus even, 0. Even minus odd, 0. It means this is zero divisible by 11. Why is 0 divisible by 11? Gives remainder 0. कभी भी कोई आपसे पूछे divisible है, आप yes बोल रहे हो, मतलब remainder should be 0. 0 divisible by 11? Yes. It means this number is divisible by 11. So divisible by 5 also, divisible by 3 also, divisible by 11 also. ठीक है, all 3. चलो. Yes, this also works. अभी I haven't told this concept ना, फिर अभी बाद में we'll use this as well. चलो. Then you want question number 4. Question number 4. 2 2 4 5 2. ठीक है. We have to check whether this number is divisible by 483. अच्छा, if this number is divisible by 8, do I need to check for 4? ठीक है. 4 से divisible है वैसे ये 52. ठीक है. I told you to learn tables also. 13 का टेबल क्या होता है? 13 4 से 13 4 से 13 4 से 52. ठीक है. So it means 52 is divisible by 4. ठीक है. So हाँ, तभी तो मैं पूछ रही हूँ, पिटाई नहीं कर रही इस बात पे. जब 13 4 द 69 क्या बोल रहे हो? ठीक है. तो मैं ये नहीं बोल रही कि ऑड नंबर कैसे आंसर दे रहे हो तुम 4 से मल्टीप्लाई करके.
ठीक है 60 से ये क्या नाम, ये एटलीस्ट ये तो चेक करो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या आंसर दे देते चलो 64 66, समझ में आता कि चलो इवन तो दे रहे हैं आंसर। मैं नहीं बताऊंगी। आपने 2018 में पास किया 10th? मेरा स्टडीज में गैप भी है, मेरा ग्रेजुएशन 23 की है, चली गया। ओके मैं नहीं बताऊंगी। 22452 ठीक है। तो पर मुझे भी बहुत टाइम हो गया 10th पास किए हुए, ठीक है। तो but because I have done my masters also in mathematics and maths was one of my favorite subjects, one of क्या only favorite subject। so I like it। 452 8 से चेक करेंगे, ठीक है क्या आता है, करो डिवाइड। 456 होगा ना डिविजिबल 452, 52 ही नहीं होता, not divisible by 8, it means 22452 is it divisible by 4? yes, last two digits देखे थे ना, is it divisible by 8? no, is it divisible by और कौन सा नंबर है 3, 2 plus 2 plus 4 plus 5 plus 2, ठीक है। so 2 and 2 4, 4 and 4 8, 8 and 7 15, 15 is divisible by 3, it means this number is divisible by 3, ठीक है। okay ठीक है, it means this number is divisible by 4 and 3 not by 8, ठीक है। हाँ जी yes देखो देखो ये चीज समझना, जब हम ये बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी, व्हेन आई एम सेइंग दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मींस आई एम सेइंग दैट ये 8 के टेबल में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू से 16 इज डिविजिबल बाय 8 राइट, 16 8 के टेबल में आता है। डू आई से 17 इज डिविजिबल बाय 8? नो, बिकॉज वो 8 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि 525 इज इट डिविजिबल बाय 5? यस, इट मींस ये 5 के टेबल में आता है। अंडरस्टूड, डिविजिबिलिटी का मतलब ये समझ में आया। अब देखो इफ यू हैव लेट्स से 4, 4 का टेबल क्या होता है, 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे लॉजिकली एक बात बताओ, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 मतलब वो 4 के टेबल में आता है, ठीक है। विल दिस नंबर बी डिविजिबल बाय 2? क्योंकि बिकॉज 2 इसका एक फैक्टर होता है, 4 2 से बना है, ठीक है। 4 इज मेड अप ऑफ 2, समझ गए। आपने एक 2 लिया, एक 2 लिया, तब जाके यू गॉट 4। 2 का टेबल क्या होता है, 2 4 6 8 सो ऑन। देखो 4 8 and then you have 10 12, 4 का पूरा टेबल will be in 2 का टेबल, अंडरस्टूड, ये समझ में आया। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 4 will be included in 2, it means there are certain numbers जो 4 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है। वो नंबर कौन से है, 4 का टेबल, 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन, ये समझ में आया। your question is if a number is divisible by 4 and the number is divisible by 2, how come that number is not divisible by 8? Because for example you take 12 only, is it divisible by 4? तो उसके फैक्टर से तो वो ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा ही, बट इट डज नॉट मीन कि 4 मल्टीप्लाई 2 से भी डिविजिबल, ये समझे। अगेन ये दोबारा देखो 15 है, आई से 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। लेट्स से दिस नंबर 15 की जगह 45 ले लो, इज इट डिविजिबल बाय 3? यस। इज इट डिविजिबल बाय 5? यस। इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 15 आल्सो, है ना। 15 का डिविजिबिलिटी रूल ही क्या होता है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 15 से होगा।
अब आप बोलोगे इफ दिस इज ट्रू हेयर, व्हाई इज इट नॉट ट्रू हेयर? 12 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो 4 मल्टीप्लाई टू 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए. बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू दैट कंसेप्ट, आई सेड कि जो आप नंबर्स कंबाइन कर रहे हो, यू वर कंबाइनिंग 3 and 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. 2 and 4 में कॉमन है, 2 कॉमन है, सो दिस रूल डज नॉट वर्क देयर. दैट्स व्हाई व्हेन आई सेड कि मुझे बताओ 75 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, आई सेड 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इनको कंबाइन कर दो, सेम वैल्यूज को कंबाइन कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई 25. ठीक है. 8 का डिविजिबिलिटी रूल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 का डिविजिबिलिटी रूल 4 मल्टीप्लाई 2 नहीं होता. अंडरस्टूड? समझ गए? बिकॉज इनमें तो अभी भी 2 कॉमन है. ठीक है. डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ उन नंबर्स में अप्लाई करते हैं वेयर नो अदर नंबर इज कॉमन. इट मीन्स बेसिकली दे आर को प्राइम नंबर्स, इनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल डिस्कस फैक्टर्स आल्सो, आई विल टेल यू को प्राइम नंबर्स इन डिटेल. ठीक है. चलो, ये डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? हो गया, समझ आ गया? चलो. अच्छा, टाइप 1 क्लियर है, आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी, यू कैन डू दैट. चलो, टाइप 2 पर चले. टाइप 2 क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, देखो, लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड. ठीक है. अच्छा, 23 में व्हाट इज द लीस्ट नंबर आई शुड सबट्रैक्ट टू गेट मल्टीपल ऑफ 7, ये बताओ. रिमाइंडर जो आएगा फिर उसके हिसाब से सबट्रैक्ट करना है ना. मैं 23 टॉफीज लाई हूँ टू डिवाइड अमंग 7 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी एक्स्ट्रा डू आई हैव? तो वो 2 ना लाए, चलेगा? ठीक है. विच मीन्स अगर आपको किसी भी नंबर को डिविजिबल बनाना है तो जो रिमाइंडर है वो माइनस कर दो नंबर में से. ठीक है. What should be the least number that I should subtract from 22 to make it divisible by 5? 22 में से नहीं, 22 में से क्या माइनस करें कि वो 5 से डिविजिबल हो जाए? रिमाइंडर क्या आता है? 2, तो 2 माइनस कर दो. ठीक है. 22 माइनस 2 20, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा. इफ आई हैव लेट्स से द नंबर 47, what should I subtract from 47 to make it divisible by 15? 15 threes are 45. What should I subtract to make it divisible by 15? 2. अच्छा, 97. What should I subtract to make it divisible by 10? 7. Remainder क्या आएगा? 10 nines are 90. Remainder is 7. ठीक है. Understood? समझ गए? यही क्वेश्चन है. What is the least number that must be subtracted from 8747? 8747 में से क्या सब्ट्रैक्ट करे टू मेक इट डिविजिबल बाय 7? डिवाइड करो. डिवाइड 8747 बाय 7. हो जाएगा रिमाइंडर में माइनस. हाँ, रिमाइंडर 4 आ रहा है. 4 7 1 का 7 1. रिमाइंडर इज 4. जो भी रिमाइंडर आए वो माइनस कर दो. तो 8747 माइनस 4, 8743 विल बी डिविजिबल बाय 7. समझ में आया? ठीक है. सो ऑप्शन बी 4 विल बी योर आंसर. ठीक है. देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3242 to make it exactly divisible by 5. Online students, is this question clear to everyone?
Type 2 question, is it clear to everyone? हाँ जी. ठीक है. Least number that must be subtracted from 3 to 4 2. Already we know 3 to 4 0 divisible by 5 होगा, तो 2 subtract करोगे तो you will get this. चलो, question number 11, 5290 to make it divisible by 6, 4. Question number 12 भी try करो. Try question number 12, 13. Online students, डिविजिबल सेम होते हैं. हाँ. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होता है ना. मल्टीपल्स मतलब टेबल. ठीक है. व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, वो अभी नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन. बट वैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12, विच मीन्स टेबल ऑफ 3, विच मीन्स मल्टीपल्स हैं तो वो 3 से डिविजिबल होंगे. क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 9, कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 होंगे उससे सबसे वो मल्टीपल ऑफ 9 मीन्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए. इन विच क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन बात? क्वेश्चन नंबर 25. अच्छा, दिस इज वो ना टाइप 3 क्वेश्चन विच मस्ट बी एडेड टू गेट. हाँ, मल्टीपल ऑफ 9 मतलब डिविजिबल बाय 9. सेम सिंपल जैसे अभी हमने किया था ना, टू मेक इट डिविजिबल बाय 8. सो जस्ट सो यू नो दैट दिस आल्सो मींस मल्टीपल ऑफ 8. स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन बी एडेड टू इन रिमाइंडर जो आ रहा है उसमें ऐड कर देंगे नियरेस्ट वाला. अभी एक मिनट ये कर लो. आई विल मूव टू टाइप 3 आल्सो. ठीक. इफ यू फील लाइक यू हैव डन दीज 2 क्वेश्चंस, आप आगे कर लो तो आपको घर पे टाइम बचेगा. यू बिकॉज यू हैव टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ना. कर लिए सारे 14 से 21? कर लिए तो कर लो. इजी नहीं होते ये क्वेश्चन आपका बेस बनाते हैं. यू विल हैव HCF. अभी आप जब HCF LCM करोगे ना, तो यू विल गेट व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट डिविजिबल बाय 5, 10 एंड 13. ठीक है. तो उसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है, इवन दो ये इजी लग रहा है, कर लो. यू विल गेट यूज टू इट. डिविजन करना, सब्ट्रैक्शन करना. ठीक है. बी 4, 5, 6, 1. रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1. 560 is divisible by 8 anyway. So 1 remainder. कर लिया सबने? ये टाइप समझ में आ गया? ठीक है. तो एक नंबर को आप डिविजिबल कैसे बनाते हो? रिमाइंडर माइनस करके. ठीक है. अच्छा, ये if I say that 6 is divisible by 3, I also mean that 6 is a multiple of 3. एक ही बात है. Divisible होना, 6 is divisible by 3 means 6 is a multiple of 3. ठीक है. So if I am saying, जैसे question number 9 में, what is the least number that must be subtracted from 8747 to make it exactly divisible by 7? I could have also asked what is the least number that must be subtracted from 8747 टू मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 7. एक ही बात. ठीक है. कि उससे डिवाइड हो जाए मींस उसका मल्टीपल होगा. मल्टीपल मतलब टेबल. मल्टीप्लिकेशन टेबल मल्टीप्लिकेशन होता है ना. मल्टीपल मतलब उसका टेबल होगा, उससे डिविजिबल होगा. ठीक है. तो एक ही बात है. अभी देखो, इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप 3, आई एम सेइंग, अभी हमने क्या किया था? सब्ट्रैक्ट करके वो नंबर को डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 8 बनाया था. राइट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैड 8747, रिमाइंडर वाज 4. ठीक है.
remainder was 4. So you said 8747 minus 4, 8743 is divisible by 7. यही किया था. इसको डिवीजन करके फिर जो डिवीजन करके जो आंसर आएगा उसमें जो नियरेस्ट नंबर जो होगा जो डिविजिबल होगा 9 के साथ. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैं आपसे, इसका आंसर 3 हो रहा है क्या? Which question? 25. एक मिनट मैं कराऊंगी वो. एक मिनट रुक जाओ. 25 क्वेश्चन अभी कराती हूँ. पहले समझाने दो ना बाकी बच्चों को भी. क्या 20 का आंसर 3 आ रहा है. I don't know. एक मिनट. Give me some time. I'll tell you. ठीक है, एक मिनट. अभी टाइप 25 के ऊपर देखो. टाइप 3 लिखा है ना. दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. वेट फॉर 2 मिनट्स. थोड़ी सी पेशेंस रखो. ठीक है, अभी हमने टाइप 1 और टाइप 2 कर लिया. समझ में आ गया ना. टाइप 3 में क्या है? आई एम नॉट सेइंग यू सब्ट्रैक्ट. आई एम सेइंग यू अब ऐड कर दो टू मेक इट डिविजिबल या मेक इट अ मल्टीपल. ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में डिफरेंस है. हमने ये किया था. When I was saying कि I am getting 23 toffees, you said, and I have to divide among 28 students. I said मैं 2 नहीं लाऊंगी. You said bring 5 more. ठीक है. Here we will use the concept of negative remainder, counterpart of your remainder. Simple remainder जो होता है अभी तक हम उसको क्या करते थे? Subtract. If you have to see add किसको करना है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? रिमाइंडर का काउंटर पार्ट. जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर है आप उसको ऐड कर दो. देखो 23 डिवाइड बाय 7. व्हाट इज द लीस्ट नंबर? इफ आई आस्क लीस्ट नंबर दैट यू सब्ट्रैक्ट टू मेक इट डिविजिबल बाय 7, क्या बोलोगे? क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए? 2. अभी यही किया है. 2 माइनस कर दो. ठीक है. इफ आई से लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू मेक इट डिविजिबल बाय 7, क्या ऐड करेंगे? बिकॉज 2 का काउंटर पार्ट 2 ये रिमाइंडर है. इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? 5. तो उसका दूसरा रिमाइंडर जो है, नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो आप ऐड कर दो. समझ में आया? तो या तो आप ये रिमाइंडर है ये माइनस कर सकते हो तो भी डिविजिबल बनेगा. इसका काउंटर पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव रिमाइंडर. इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? बिकॉज 7 माइनस 2. ठीक है, वो आप ऐड करके भी यू कैन मेक इट डिविजिबल बाय 7. दोबारा अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो. ठीक है, 8 0 3 6 4 2. यू हैव टू मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, इससे रिमाइंडर क्या आएगा 9 से डिवाइड करके? इसको ऐसे भी कर सकते हैं. सम ऑफ डिजिट हमने किया वो भाई अभी आई एम वो भी बता. रिमाइंडर क्या आएगा 9 से डिवाइड करके? अच्छा ये बताना 37 का रिमाइंडर क्या आता है व्हेन यू डिवाइड बाय 9? 37 का रिमाइंडर 1. ऑल्सो 3 plus 7 is 10. 10 का रिमाइंडर बाय 9, 10 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर 1. तो अगर आपको 9 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, सम ऑफ डिजिट्स को भी डिवाइड करोगे यू विल गेट द सेम रिमाइंडर. ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क 57 डिवाइड बाय 9, व्हाट इज द रिमाइंडर? ठीक है, 5 plus 7, 5 plus 7 12. 12 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर 3. सो 57 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर 3. 54 होता है ना डिविजिबल. ठीक है, 56 नहीं होता. टेबल बहुत बहुत पिटाई करूंगी. ठीक है, टेबल ही नहीं याद, 9 का टेबल ही नहीं याद कर. ठीक है, 57 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर इज हाउ? 5 plus 7 12. ठीक है, 126 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर इज सीधा 6 7 8 9 रिमाइंडर इज 0. 137 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर इज 7 plus 3 10. 10 plus 1 11. 11 डिवाइड बाय 9 2. रिमाइंडर इज 2. ये नंबर है. वी हैव टू चेक ओनली द रिमाइंडर ही चाहिए ना बस. ठीक है, तो 8 प्लस
0 8 8 plus 2 10 10 and 10 20 23 23 divided by 9 remainder is 5 18 होता है ना डिविजिबल रिमाइंडर इज 5 ठीक है इतना समझ में आ गया ठीक है रिमाइंडर चेक करना है तो सीधा सम ऑफ डिजिट से भी चेक कर सकते हो तभी सम ऑफ डिजिट जब 0 होता है इट मींस रिमाइंडर विल बी 0 नंबर इज डिविजिबल ठीक है अच्छा नाउ इफ आई आस्क यू 803,642 डिवाइड बाय 9 यू नो रिमाइंडर क्या आया था इसका रिमाइंडर वाज 5 ठीक है ये क्वेश्चन है इफ आई से अब ध्यान से सुनो सब अपना नोटबुक छोड़ दो ठीक है ध्यान से सुनो लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट अ नंबर डिविजिबल बाय 9 कौन सा होगा वो लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड अभी तक आप सब्ट्रैक्टेड का ही कर रहे थे क्या सब्ट्रैक्ट करते थे हम रिमाइंडर क्या होता है एक्स्ट्रा याद रखो रिमाइंडर इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज सब्ट्रैक्ट हो जाती है ठीक है लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई एम ऑडिबल नाउ ऑडिबल ठीक है चलो ऑल आई एम आस्किंग इज एक नंबर है डिवाइड बाय 9 लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड किसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप रिमाइंडर को ठीक है याद रखना सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं रिमाइंडर को जो हमारा इन जनरल वी नो दैट वॉट एवर पॉजिटिव रिमाइंडर जो सिंपल रिमाइंडर आता है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो बिकॉज वो एक्स्ट्रा होता है ठीक है तो इफ आई गेट 23 टॉफीज हाउ मेनी टॉफीज विल यू सब्ट्रैक्ट टू मेक इट डिविजिबल बाय 7 2 2 एक्स्ट्रा थी वो हटा दी ठीक है इफ आई से नाउ you will say 5 subtract कर दो but my question is what should be added ठीक है अब नेक्स्ट टाइप 3 क्वेश्चन क्या है अभी तक हमने टाइप 2 क्वेश्चन किया था क्या सब्ट्रैक्ट करें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है क्या ऐड करना है व्हाट शुड बी एडेड तो सेम 23 टॉफीज थी आप कितनी टॉफीज ऐड करते थे 5 बिकॉज 2 plus 5 7 2 पॉजिटिव रिमाइंडर था 5 नेगेटिव रिमाइंडर था या रिमाइंडर क्या है व्हाट विल बी द नेगेटिव रिमाइंडर 9 से पॉजिटिव रिमाइंडर 5 नेगेटिव रिमाइंडर तो वो ऐड कर सकते ठीक है समझ गए दोबारा देखो आपने अभी ये क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 10 लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इसी पे आ जाओ यही वाला इसी टाइप में मैं दोनों तरह से क्वेश्चन करके दिखाती हूँ लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड ये पूछा आपसे लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड क्वेश्चन नंबर 10 अभी किया हमने रिमाइंडर वाज 2 यू सेड 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो ठीक है 3242 -2 3240 यही किया था ठीक है इफ आई एम सेइंग लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड आप ऐड क्या करोगे 5 -2 रिमाइंडर क्या है 2 नेगेटिव रिमाइंडर क्या है 3 3 को हम ऐड कर देंगे नहीं समझ आया समझ आ गया कंफ्यूजन है दोबारा बताओ क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा किया 11 भी किया 5290 इसका रिमाइंडर क्या आ रहा था 6 से 4 4 था ना ठीक है इफ आई से व्हाट इज द नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा ठीक है इफ आई से व्हाट इज द नंबर दैट शुड बी एडेड 6 -4 2 ऐड कर दो इट मींस 5290 -4 या फिर 5290 +2 दोनों तरीके से यू कैन गेट अ नंबर डिविजिबल बाय 6 ठीक है इट डिपेंड्स कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है सब्ट्रैक्शन पूछा है या एडिशन पूछा है समझ में आया ठीक है
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या था, 4 5 6 1 टू मेक इट डिविजिबल बाय 8, रिमाइंडर क्या आया था 1, सो हमने क्या किया subtract 1, if I say what should be added you will say 8 minus 1 7, समझ गए? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, अच्छा 25 तो कर लिया ना हमने, 672 क्वेश्चन 26 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 है, इफ आई से व्हाट इज अ नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड तो आप सीधा 2 लिख दोगे, व्हाट इज द नंबर दैट शुड बी एडेड 5 minus 2, समझ गए, आ गया समझ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 2 4 5 8 divide by 6, what is the remainder, रिमाइंडर क्या आ रहा है 24 डिविजिबल है, 4 आ रहा है रिमाइंडर, 54 भी 4 इज द रिमाइंडर, इफ आई से सब्ट्रैक्ट क्या करना है तो आप क्या बोलोगे, इफ आई से ऐड क्या करना है 2, 2 है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, आ गया समझ, क्लियर है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, ठीक है, चलो टाइप 3 के ट्राई क्वेश्चन नंबर 28 29 30, अब आपका डाउट क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का, 25 वाला डाउट हो गया क्या? बताओ, ये जो जैसे कि जो 9 की जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है, हाँ। 9 की जो हम करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के कोशिश करते हैं, तो सम ऑफ डिजिट मैंने किया कि जैसे सम ऑफ डिजिट्स का आ रहा था 23, ठीक है, ठीक है, मैंने सबसे नीरेस्ट देखा कि 27 डिविजिबल हो सकता है, हाँ, +4, तो प्लस 5 का मैंने किया कि 5 वो भी एक देखो, अब आप एक मिनट बस, 23 है, हाँ जी, ठीक है, इट मींस आप जब इसको 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, वैसे 23 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब कि मैं उसको प्लस कर दूंगा ना, कि जैसे 4 है ना तो 9 5 या फिर 5 5 हम वो माइनस कर देते हैं या फिर +4, बेसिकली हम वही बात है, 23 को या तो आप 18 बना सकते हो या आप 27 बना सकते हो, ठीक है, सिंस यू हैव टू ऐड तो आप 23 को 27 बना दो, हाँ, दिस विल वर्क फॉर 9, ठीक है, बट क्योंकि जैसे मल्टीपल ऑफ 6 बनाना है, 6 में आप ऐड थोड़ी कर सकते हो, 6 में आप सम ऑफ डिजिट्स नहीं कर, जैसे 5 है तो 0 है 5 और 6 में मैंने सीधा 2 कर दिया क्योंकि 6 का मल्टीपल है ना, जैसे कि 6 मल्टीपल ऑफ 6 निकालने के लिए क्या था 2 and 3, हाँ 2 and 3 करने के लिए, ठीक तो है, ये तो 3 के साथ हो ही रहा है सीधे, 3 के 2 के साथ तो हो रहा है, Yes. 8 है, हाँ तो 3 के लिए मुझे करना पड़ेगा कि वापस डिजिट ऐड करने पड़ेंगे कुछ, जैसे 2 अभी मुझे निकाला था, इसका आंसर डी आ रहा है 4 + 5, ठीक है, यू वांट टू मेक 2 4 5 8 डिविजिबल बाय 3, बस जस्ट एक चीज ये याद रखना, हाँ, कि जब 3 से डिवाइड करो तो वो ऑड ना हो ताकि वो 2 से ना कैंसिल आउट, हाँ ठीक है, ओके डन, 28 29 30, 28 का आंसर क्या आ रहा है सबका 9, 29 का 5, 30 का 0, ठीक है, ओके, चलो अभी सब अपनी असाइनमेंट बंद कर दो, ठीक है, हम जो भी हमने शुरू से क्लास में किया वो रिवाइज करेंगे, ओके, चलो मुझे बताओ, स्क्वायर वगैरह तो कल वाला तो कर लोगे ना, वी हैव डन इट, वी हैव रिवाइज्ड इट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास एज वेल, डिविजिबिलिटी से, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन से, if you get a remainder of 5 when I divide by 17, what will be the positive negative remainder, 5 को 17, if I get a remainder of 5
when divided by 17. ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 17 minus 5 12. ठीक है, समझ गए पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट. डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यूनिट डिजिट 3, सम ऑफ डिजिट्स. जो 9 का रूल है ना कि रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि 5474 डिवाइड बाय 9, व्हाट इज द रिमाइंडर? क्या होगा? व्हाट इज द रिमाइंडर? 5 + 4 9. ठीक है, 7 + 4 कितना हुआ? 7 + 4 11, 9 + 11 20. 20 को 9 से डिवाइड कर दो. ठीक है, 20 डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर इज 2. तो इसका भी रिमाइंडर 2 होगा. इतना तो याद है. ठीक है, सेम रूल वर्क्स फॉर 3 एज वेल. 5 4 7 4 डिवाइड बाय 3, व्हाट इज द रिमाइंडर? 5 4 7 2 कर दो. 5 4 7 2 डिवाइड बाय 3, व्हाट इज द रिमाइंडर? 0. 5 + 4 9, 7 + 2 9, 18 divided by 3, remainder is 0. If I say 3 4 7 2 divided by 3, what is the remainder? 7 + 2 9, 9 and 7 16, 16 divided by 3, remainder is 1. So basically जो 9 का रूल है, 9 और 3 का divisibility rule is the same. If sum of digits is divisible by 9, then the number is also divisible by 9. Remainder of sum of digits is also equal to remainder of that number by 9. Same works for 3 as well. ठीक है, 3 से भी remainder find out करना हो तो sum of digits से remainder find out कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद we did 5 divisibility rule सब याद है. अच्छा, what will be the divisibility rule of 26? 2 and 13. 26 को आप कैसे लिखोगे? 26 को शुरू से डिवाइड करना स्टार्ट करो. 2 से डिवाइड होता है. ठीक है, तो इट मीन्स आप 26 को ऐसे लिख सकते हो, 2 × 13. 13 को कैन आई डिवाइड फर्दर? नो, इट मीन्स 2 से चेक करो एंड 13 से चेक करो. डू यू हैव अ फिक्स्ड डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13? नो, नहीं है. 13 7 13 17 19 इनका नहीं करना, चेक करना डिवाइड करके. ठीक है, नो डिविजिबिलिटी रूल फॉर दिस. देन व्हाट विल बी द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 24? 24, is it a prime number or a composite number? Composite. क्यों? even है. ठीक है, so 24 क्या होगा? 2 × 12 ऐसे लिख दूं. ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख दूं. फर्दर 6 को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं. 2 × 2 × 2 कंबाइन कर दिया, 8 × 3. So if it is divisible by 8, it is divisible by 3, it is divisible by 24. ठीक है, ओके. चलो, बहुत ध्यान से आंसर करना. If a number is divisible by 5, it is divisible by 7. Is it also divisible by 35? If a number is divisible by 5 and 7, is it divisible by 35? Yes. क्यों? 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? Can I break this down further? ठीक है, if a number is divisible by 12 and the number is divisible by 2, is it divisible by 24? सोचो सोचो, is it divisible by 24 or not? 5 and 7 में कुछ कॉमन था? नो, 5 and 7 को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ना आप. 12 और 2 को कर सकते हो. 12 को लिख सकते हैं 4 × 3. जब तक we can break it down to different prime numbers, you cannot give this rule. समझ गए? तभी 24 में आपने डिविजिबिलिटी रूल क्या निकाला था? 8 and 3.
You never said 12 and 2 because it could have been broken down further. ठीक है, understood? इन नंबर्स में कुछ फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए. If I say कि a number is divisible by 11 by 2, is it divisible by 22? 11 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है. क्या ये 22 से डिविजिबल होगा? क्योंकि हम इसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, विल इट बी डिविजिबल बाय 20? नो. क्यों? 10 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 5. फिर आप 2 और 2 को कंबाइन करोगे तो ये क्या बनेगा? 4 मल्टीप्लाई 5. अब ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 20 कि 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है. एनी अदर डाउट फ्रॉम टुडे सेशन? क्लियर? आपने क्या करके आना है देखो. अच्छा चलो एक बार ना द वेरी लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है देखो. आई विल जस्ट टेक अप 5 more minutes. ठीक है. यू हैव देखो 2 statements are given followed by 2 conclusions, ऐसा लिखा होगा. बिल्कुल लास्ट में चले जाओ असाइनमेंट के, बिल्कुल लास्ट में. ये पेज है ना, लास्ट सेकंड पेज. ठीक है. 2 statements are given followed by 2 conclusion. You have to check which conclusion is true and which conclusion logically follows. ठीक है. स्टेटमेंट क्या है? all numbers are divisible by 2. ठीक है. all numbers are divisible by 3. ये 2 स्टेटमेंट है कि आपके पास ये है एक सेट मान. इसमें लेट्स से ये नंबर है A B C D E F G H सो ऑन. स्टेटमेंट जो गिवन होती है वो ट्रू मानते हैं हम कि इट इज द स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, which the examiner has given you, that statements are supposed to be true. If I will say all apples are oranges in statement, it means all apples are oranges. ठीक है. So statement में क्या given है? Numbers are divisible by 2. Numbers are divisible by 3. ठीक है. कंक्लूजन बताओ आप क्या बोल सकते हो. अब ये मैं आपसे शुरू से पूछ रही हूँ. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इज इट डिविजिबल बाय 6? यस. तो कंक्लूजन 1 इज इट ट्रू? ट्रू होगा ये. कंक्लूजन 2 बताओ. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, हम 4 से कैसे बोल सकते हैं? अंडरस्टूड. बट अब मैं आपको ये देती हूँ. स्टेटमेंट 1 में divisible by 8, statement 2 में divisible by 3. Now is it divisible by 4? Number is divisible by 8. तो and number is divisible by 3 also. तो 4 से भी तो divisible होगा. 8 से divisible है. 8 के टेबल में आ रहा है. 8 का टेबल क्या होता है? 8, 16, 24. ये अगर कोई 8 के टेबल में एक नंबर आ रहा है तो 8 भी तो 4 से divisible होता है. 8 is 4 multiply 2. तो वो 4 के टेबल में भी आए. अगर कुछ 2 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज 2 4 से नहीं बना है. बट अगर एक नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इट विल बी डिविजिबल बाय 2 आल्सो, बिकॉज 4 2 से बना है. समझ गए? बड़ा नंबर गिवन हो तो स्मॉलर का फाइंड आउट कर सकते हो अगर वो उसका फैक्टर है. ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है. ये आपका CSAT 2020 का क्वेश्चन था. देयर आर मोर क्वेश्चंस इन PYQs रिलेटेड टू दिस, बट फर्स्ट वी विल कंप्लीट ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन. वो कल करेंगे. ठीक है. टुडे you will have to revise everything that we have done till now. Type 3 तक क्वेश्चन करके आना. Okay. You can also try type 4. Type 4 भी try कर सकते हो if you can do. Otherwise we will obviously do the questions in the class tomorrow. All right. Thank you so much for attending the session.